So the link has been shared in all the groups again, and we are Hmm. getting a lot of members. There are approximately around 39 right now. So you can take a call. Yes. Okay. We'll start, Saroji, within 2 minutes, 11:35 sharp. Requesting everyone to please switch on their videos. I would love And to see all beautiful Payal, faces. तुम Yes. लोग सब महुआ जी को और तुम लोग ग्रुप के लीडर्स और को लीडर सबको पिन कर दो. एक्चुअली नितिका ही होस्ट है ना, तो नितिका करेगी. हाँ, नितिका बिकॉज को बोल दो, नितिका पिन कर देगी. हाँ, नितिका पिन कर दो ना हम लोग को और महुआ जी को. हाँ. रंजना, मेको, श्वेता, सपना और महुआ जी को. हम्म. Actually, I'm logged in from my mobile, so उसमें मेरे को है ना सबका पिन ऑप्शन नहीं दे रहा है. You are also the co-host. You can also pin ना. अच्छा, वेट. को होस्ट रंजना को भी बना दो ना, रंजना को भी बना दो को होस्ट. हाँ नितिका, मुझे बना दो, मैं सबको पिक कर दूंगी. हाँ. It will change because कविता is two host होते हैं ना. एक कविता है और एक कोई एक जन हो सकता है. अच्छा, हाँ, तो रंजना को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. रंजना को बना दो को होस्ट. I made Anjana. हाँ, ठीक है. रंजना, तुम पिन कर दो ना सबको. तो श्वेता, वी आर गुड टू गो नाउ. Okay, thank you. Welcome, Cafeites. The single all-pervasive element for any business is resource mobilization. To start a business, we need seed capital and working capital. And the single largest factor of working capital is inventory or stock for any product-based business. It's a prerequisite to build up some inventory to serve our customers promptly. It goes hand in hand that if there is stock, especially in the ever volatile industry of fashion and lifestyle, there is always the risk of obsolescence leading to accumulation of dead stock. This, incidentally, is a topic for discussion today. In this, the second learning session of our business group 2B, clearance of dead stock. And who better to walk us through this learning session than the mentor of sorts, Mahua Datta, who will be more fully introduced a bit later. We can't thank enough our very own founder, Kavita Agarwal, along with the board directors, Darshana and Nidhi, and other board members for creating this distinguished platform. We also welcome the able support of our group mentor, Sapna Rungta, to this ensemble. I now take the opportunity to request Sapna to enlighten us with her visionary perspectives. Over to Sapna. Good morning, everyone. Very happy to see new faces, and it's very interesting topic. It's more of a, I'll say कि untouched topic है ये. किसी ने शायद इस टॉपिक को उठाया नहीं है, और ये प्रॉब्लम हमारी नहीं, बहुत लोगों की है. बिजनेस करते हैं करते जाते हैं, पर हमें डेड स्टॉक क्लियरेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. तो ये टॉपिक जो है कि आज हम उम्मीद करते हैं कि महुआ जी इस पे हम लोगों को बहुत सारा इंसाइट देंगी, एंड हमारे जो मेंबर्स हैं उनको इससे काफी बेनिफिट होगा.
So I'm very hopeful for today's this session. Chalo, carry on. Thank you, Sapna. As this is an interactive session, we would request you to please leave your questions in the Zoom chat box, which will be addressed towards the end of the session. And now, without any further ado, I take this opportunity to hand over the floor to our group leader, Payal Goenka, to initiate this session. Over to Payal. Hello, everyone. Good morning. Clearing out dead stock is like pruning a tree, creating room for new growth, better products, and fresh ideas. So, to enlighten on this session, today we have Mahua Datta with us. Dr. Mahua Datta, co-founder of Devil You Chocolates, is a versatile marketing trainer and motivational speaker. Dr. Datta has more than 20 years of work experience in corporates and academics. She is a graduate in economics, MBA in marketing management, and PhD in retail marketing management. She has received Best Paper Awards from several institutions, including IIT Kharagpur, IIM Ahmedabad, and many more. She has been a corporate trainer for more than 15 years now and has trained senior management employees of several public and private sector organizations. She is an active member of Bengal Business Council, BNI, TIE, and RAI, involved in organizing various corporate events. Very recently, Devil You as a brand has been selected for a sponsored trip to Bradley University, USA. So, Mahuaji, a huge round of applause for the accolades which you have earned. And now I would like to start with this session, clearance of dead stock, a huge topic, and we want to know about it in a very detailed way. So my first question to you, Mahuaji, is fashion and lifestyle is a huge subject. And in this group, in Cafe, we encourage women to start their own business and become financial independent. And there are a lot of business women in 2B, which is related to lifestyle and fashion, like garments, fashion jewelry, home decor, furnishing, electronics, and many more. So my first question to you is, please guide us in the dead stock in this business criteria. Over to you, Mahuaji. Okay. Thank you so much, Payalji, for such an elaborate introduction. First of all, I thank Cafe for inviting me and, in fact, considering me good enough to share my thoughts with you. So yes, you have actually chosen a very, very relevant topic, which is dead stock. So what I would like to start off with is why dead stock? Like हमारे पास जो ये dead stock होता है वो क्यों होता है? Why do we at all get a dead stock? In fact, you mentioned fashion industry. Let's understand that across many other industries also dead stocks do happen. ठीक है? तो why dead stock happens? अगर हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि डेड स्टॉक क्यों होता है, तो हो सकता है वहीं से हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आए ताकि हमारा डेड स्टॉक ना हो, या डेड स्टॉक को मूव करने का कुछ ट्रिक्स या कुछ उपाय भी हमें शायद उन रीजन से मिले. लाइक एज वी ऑलवेज से कि अगर हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हो सकता है सोल्यूशन ढूंढना इजी हो जाए. सो सबसे पहला बात यह कि डेड स्टॉक क्यों होता है. तो डेड स्टॉक हम किसको बोलते हैं? डेड स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट जो कि सेल नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है. सिर्फ सेल नहीं हुआ है नहीं, सेल हो भी नहीं रहा है, और शायद नॉर्मल सिचुएशन में नियर फ्यूचर में सेल होने के कोई चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं, और हम पूरा लॉस्ट हो जाते हैं कि इस चीज को हम मूव कैसे करें, इस चीज को आगे बढ़ाए कैसे. तो डेड स्टॉक वो है जो कि हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए डेड हो चुका है और उससे हमें कुछ मिलने वाले या मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, तो उसको हम डेड स्टॉक बोलते हैं. तो ये डेड स्टॉक क्यों हो सकता है?
पहला रीजन जो डेड स्टॉक होने का है, और वो सबसे बड़ा रीजन है, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में, लाइफस्टाइल में, होम डेकोर, ज्वेलरी, इन सारे इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा रीजन है, उसको हम मैनेजमेंट या मार्केटिंग की भाषा में कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। सेलिंग कैनिबलाइजेशन इन द सेंस कि हम खुद ही किसी एक चीज की इतनी सारी वैरायटीज बेचते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि सेल हो, शायद कस्टमर को उसके बदले कोई हमारा ही और प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है। जैसे अगर हम फैशन की बात करें और हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कुर्ती का बहुत स्टॉक है और साथ में हम शर्ट्स भी सेल कर रहे हैं और साथ में हम गाउन्स भी सेल कर रहे हैं, तो हमारे ही किसी गाउन के लिए कोई पर्टिकुलर कुछ कुर्तियां नहीं बिकती, हमारे ही कुछ शर्ट्स के लिए हमारी ही कुछ कुर्तियां नहीं बिक रही। तो एक होता है कि हमारे खुद के प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से कंपटीशन में उतरते हैं और उस कंपटीशन के कारण हमारे पास वो स्टॉक जम जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा अपना उसमें कोई गलती नहीं है, शायद मार्केट डाउन जाए, जैसे कोविड के समय हुआ था कि मार्केट डाउन जा रहा है और सेल हो नहीं रहा है, सेल खराब हुआ है या सेल कम हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और जो कि सब बहुत कॉमन रीजन है कि सेल नहीं हुआ इसीलिए अपना डेड स्टॉक हो गया। एक कारण है डिफेक्टिव प्रोडक्ट या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। बनाते समय कि उसकी क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना हम बाकी प्रोडक्ट्स में रखते हैं, या कुछ हमारे पास खराब क्वालिटी की चीजें आ जाती है, तो वो हमारे पास डेड स्टॉक बन जाता है, क्योंकि कस्टमर खरीदने जाता है वो हमारे ही प्रोडक्ट से कंपेयर करके समझ जाता है, प्रोडक्ट से कंपेयर करता है, एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क. We have better products, we have better quality products available in the market, so why should I pay for this one? So again, this is something which is in our control. हमारे कंट्रोल में होता है। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि कम दाम में कुछ चीजें मिल जाती हैं, we think we'll do good business with them. हम तो Mahua ji, your voice is not है, clear वो actually. अपने से अटक जाता है। Hello. I have कट कट के आ रहा अभी है ना clear आ आवाज, रहा है? इसलिए। Now is it okay, clear? Yes, yes, now it is clear. Okay, okay. I like in 2 minutes I'll be in front of my laptop also, तो वो नेटवर्क और बेटर है, वाईफाई में चला जाएगा। तो लास्ट पॉइंट विच आई वाज सेइंग कि कभी कभी हमारा प्रोडक्ट बहुत पुअर क्वालिटी का हो जाता है, और इस पुअर क्वालिटी के होने के चलते प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कंपेयर करने लगते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, एंड देन हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद होता है। वी आर नॉट एबल टू सेल आवर प्रोडक्ट्स because customers understand that this is poor quality. Okay, so that is one more reason क्योंकि हमारा स्टॉक जम जाता है। चौथा रीजन है, मैं ये सारा चीजें ना जो भी बोल रही हूँ पॉइंट वाइज आई विल मेक अ डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट, तो अगर आप चाहो तो ये पूरा सर्कुलेट कर दे सकते हो, इसका फुल मैं एक नोट्स भेज दूंगी जो भी मैं बोल रही हूँ। तो फोर्थ रीजन ये है कि हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वो सिस्टम डिफेक्टिव है। मतलब हम कोई भी प्रॉपर प्रोसेस एज वी से वो पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे ठीक से। तो ये वाला चीज हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर रही हूँ, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, और फिर मैं ऑन करती हूँ। ओके। रंजना, एक बार बहुत वो ही पिन से हटा दो ना, एक फोटो ले लेते हैं। फोटो हम क्लिक किए हैं पायल, कर ली तुम क्या? ले लो ठीक है, फिर ठीक। भी। यू आर ऑन नहीं, अभी मेरे को सिर्फ मैं पिन यू आर ऑन लैपटॉप। मेरा चेहरा दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा है, नहीं, बिकॉज आई तुम एम। लैपटॉप पे हो क्या? हाँ, मैं लैपटॉप पे हूँ। देन यू टेक अ पिक्चर। सो रंजना, एक बार पिन से हटा दो ना तो सबका आ जाएगा। पायल हटा हुआ है पिन से। हटा हुआ है, पिन में कोई नहीं है, अभी जो बोलेगा हाँ, पायल। तुमको अपना भी चेंज करना होगा। पायल, तुम ऊपर राइट हैंड में देखो, व्यू लिखा हुआ है, उस व्यू पे क्लिक करो, उसमें गैलरी चूज कर लो। ठीक, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरोजी। हाँ।
Requesting everyone to smile. अपने डेड स्टॉक के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं, समवेयर वी आर द रीजन। बहुत ही Yes. अच्छा But पॉइंट मोहन जी ने बोला है। बट वन पॉइंट इज, जैसे महुआ जी ने बोला ना कि अपने अपने ही प्रोडक्ट से मतलब वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम कुर्ती भी रख रहे हैं, हम गाउन भी रख रहे हैं, हम वो भी रख रहे हैं। तो उसी रीजन से, सो इट मीन्स दैट वी शुड केटर विद ओनली वन In, थिंग। in short, it is internal competition which we are creating unknowingly. यस। So basically we need to be focused. यस, फोकस्ड ऑन ओनली वन प्रोडक्ट। उसका दूसरा थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि हम ये क्यों करने लगते हैं कि लगता है कि एक क्लाइंट हमारे अलावा कहीं जाए ही नहीं, उसको जो चाहिए हम ही दे देंगे। जो चाहिए हम, यस, अंडर वन रूम। So Okay, Swati so ji, am what I you? audible and visible? Yes, 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 just a ma'am. second, just a second. Yes, ma'am. Okay. आपको स्पॉटलाइट फॉर। Yes, ma'am. You can start. Okay. So Mahua ji, you can continue with that question, or is it you have answered it? Hello. Yeah. So, हाँ. is the audio video clear? Yes. Okay. Okay. So sorry because I was on the road. Right. No, The no, video it's is okay, very ma'am. hazy. If you can improve. If you can make it more brighter a bit. This is the maximum brightness I can Yes, see. it's okay. Okay, It's okay, perfect. Mahua ji, not an issue. Okay. Okay. So, So- Mahua ji, as per me, I think कि जैसे अपने खुद के ही कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, जैसे हम Right. एक ही मतलब अपने शोरूम में सब तरह का सामान रखते हैं, तो हम खुद से ही कंपटीशन कर रहे हैं. So it means we should be Absolutely. focused on any one thing which we are selling. Absolutely. तो एज आई वाज सेइंग, तो ये जो प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ये बात किया कि जो हमारा कैनिबलाइजेशन होता है, खुद के प्रोडक्ट के साथ खुद की हम कंपटीशन कर लेते हैं. दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर मार्केट डाउन है तो सेल्स का खराब होता है. तीसरा पॉइंट ये होता है कि हम कभी कभी प्रोडक्ट्स जो है वो पुअर क्वालिटी की रखते हैं, या कभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाता है तो अपने पास डेड स्टॉक हो जाता है. चौथा मैं बोल रही थी जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट छोटे से छोटे बिजनेस के साथ के तरफ से भी बोलिए, और यू स्पीक ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट और एन इंडस्ट्री, एनीथिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज की टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट गड़बड़ है तो बड़े से बड़े कंपनी की प्रॉफिट हिल जाती है. तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है हमारे में एक जब बिजनेस करने हम आते हैं, जब इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने भी पहली बार जॉब छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया फुल्ली, तो वो एक टेंडेंसी होती है हमारे में कि कोई भी अच्छा प्रोडक्ट दिखता है, कुछ भी होता है, या जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो मार्केट में कोई नया चीज किसी ने बोला, किसी के पास कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखा, तो हमारे में वो एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम तुरंत उस चीज को बनाना शुरू करते हैं, उस चीज को खरीदना शुरू करते हैं विदाउट डूइंग रिसर्च इन द मार्केट. नया कोई भी ट्रेंड है या नया कोई भी फैशन है, नया कुछ भी है, तो वो चीज ऑलवेज चलेगा मार्केट में, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज चलेगा मार्केट में, वो चीज होगा, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है. तो वो क्या हम कर सकते हैं उस नई चीज के लिए, ठीक है. तो अब ये जो मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो, जस्ट अ मिनट, एक बार आए. सो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, हमें अपने पास जो स्टॉक है उसका सबसे पहले एक हिसाब रखना है. कैसे हिसाब रखना है? हम बोल देते हैं हमारे पास 30 ड्रेसेस हैं, हमारे पास 30 ड्रेसेस हैं, 40 ड्रेसेस हैं.
ड्रेसेस नहीं है, हमें हिसाब ऐसे रखना है कि हमारे पास कितने सारे लेट्स से कुर्ती है, कितने सारे शर्ट हैं, कितनी सारी नाइट ड्रेसेस हैं, कितने सारे गाउन्स हैं, या हमारे पास इयररिंग्स इस प्राइस के कितने हैं, इस प्राइस के इयररिंग्स कितने हैं। तो हमें हिसाब इस तरह से रखना है। तो जब हम स्टॉक का हिसाब उस डिटेल में रखते हैं, तब जाके जब हम नेक्स्ट कोई परचेज करेंगे या नेक्स्ट कोई भी चीज जब हम बनाएंगे, तो हमारे पास ये आइडिया पूरा क्लियर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई अपना जैसे वेंडर हो गया, वो बोलता है कि नया कोई चीज आया है, आप प्लीज ले लो क्योंकि अभी हम कम दाम में दे रहे हैं, बाद में ये चीज आपको नहीं मिलेगा। तो हम अपना वापस जब अपना एक्सेल शीट देखते हैं, अपना रिकॉर्ड देखते हैं, और हमें पता चलता है कि ठीक है कम दाम में दे रहा है, पर मेरे पास अभी उसका 200 पीसेस पड़ा हुआ है। तो जब ये 200 पीसेस मेरे पास ओल्ड डिजाइन के पड़े हुए हैं, और मैं नए डिजाइन का भी अगर 100 पीसेस ले लेती हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब एकदम श्योर है कि मेरा वो 200 पीस जमेगा, क्योंकि लोग भी नया डिजाइन देख के वही पहले खरीदना चाहेंगे, पुराना डिजाइन कोई फिर खरीदेगा नहीं। तो मैंने उस 200 जो अपने पास पुराना पड़ा हुआ था, उसको मैंने खुद ही मार दिया बाई बाइंग 11 मतलब न्यू स्टॉक। तो ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, हमें उस चीज का हिसाब करना है कि हम किस लेवल पे आके अगली बार ऑर्डर करेंगे, या किस पॉइंट पे जाके हम वापस फिर से अपना स्टॉक नया खरीदेंगे। तो ये एक बड़ा रीजन हो जाता है कि अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करते, या या अभी अगर जैसे हमारे पास इतना स्टॉक है, ये मेरा कितना दिन चलेगा, कितने सारे एग्जीबिशंस में जाएगा, या कितना दिन इसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ये चीज का कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि हम फिर से नया स्टॉक खरीदेंगे। So it goes in the same way with furnishings and like Yes. home decor, everything. एब्सोल्युटली, फॉर एवरीथिंग। लेकिन एक ही चीज का खाली डिफरेंस है, लाइफस्टाइल में कहीं कभी कभी हम फूड स्नैक्स इन सब को भी इंक्लूड करते हैं उनमें, और बाकी सारी चीजों में जैसे आपका गारमेंट्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, उनमें और बाकी में डिफरेंस ये है कि आपको लाइफस्टाइल में एक सर्टेन लेवल तक वैरायटी दिखानी पड़ेगी। जब तक आप कस्टमर्स को वैरायटी नहीं देंगे, आप से वो एक सामान या 5 सामान अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट भी आपने कस्टमर को दिखा दिया, तो भी वो नहीं लेंगे। उनको और 50 देखना है, तब जाके वो आपका अच्छा वाला सामान लेंगे। तो ये फैशन, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, होम डेकोर सबके लिए होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि किस लेवल पे आके आपको ऑर्डर करना है, कितनी पीसेस हैं, ये आपके हर एक के इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और मैं आपके वेबसाइट पे पहुंच जाती हूँ, तो उस वेबसाइट पे जाके मुझे अगर कुर्ती टाइप करके 5 कुर्ती दिखी तो मैं कभी नहीं खरीदूंगी, लेकिन मुझे अगर वहां पे 30 कुर्तीज दिखी तो हो सकता है मैं 2 वहां से खरीदूं। लेकिन अगर आप कहते हो कि हम डिजाइनर वेयर बना रहे हैं, और तब मैं आपके शोरूम में जाके 2 या 5 कुर्ती देख रही हूँ और वो बोल रहे हैं कि आप बताओ आपको कैसा चाहिए, हम वैसा कस्टमाइज बना देंगे, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सिर्फ कस्टमाइज्ड ही बनाते हो। ओके, तो ये चीज बहुत ध्यान से ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस कौन सा है, और उस बिजनेस में मुझे कितनी वैरायटी दिखानी होगी, उसमें मेरा कितना स्टॉक होना चाहिए, और अभी है कितना मेरे पास, तब जाके हम अगला स्टॉक खरीदें। तो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है कि फोरकास्ट करना। बिजनेस में फोरकास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको ये फोरकास्ट करना है कि मेरा अगला कुछ दिनों में कैसा सेल हो सकता है। दिवाली आ रही है, लोग खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तब अगर मेरा स्टॉक कम हुआ तो जिनके पास ज्यादा है और उनका निकलेगा। अगर हमारे पास ऑर्डर्स ऐसे आते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई रेगुलर पीरियोडिकल ऑर्डर नहीं आता, मान लीजिए आपका होलसेल का बिजनेस है, तो आपसे जो रिटेलर लोग खरीद रहे हैं वो एक स्टेडी रेट पे खरीदते हैं, हर महीने आपको इतना रुपया का ऑर्डर देते हैं, तो आपके लिए इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे रिटेलर आपको कितने ऑर्डर देने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हो,
तब आपका ऑर्डर इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है शादी के सीजन में थोड़ा ऊपर चला जाए, फेस्टिवल में थोड़ा ऊपर जाए, बाकी टाइम पे थोड़ा डाउन जाए, जब बच्चों का स्कूल एग्जाम्स ये सब खत्म होता है थोड़ा सा फिर ऊपर चला जाता है, या मान लीजिए जब आपका वो ईयर एंडिंग आता है, टैक्स वैक्स देना होता है, उस समय कस्टमर्स की खरीदारी थोड़ी सी अप्रैल में कम हो जाती है, फिर फेस्टिवल सीजन आता है फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो ये अगर इनकंसिस्टेंट अगर है तो आपको भी अपना ऑर्डर उसके साथ मैच करा के देना होगा जब आप अपना स्टॉक खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आपने मतलब एक कंसिस्टेंस लेवल पे आप खरीदते जा रहे हो लेकिन आपका ऑर्डर ऊपर नीचे होता है तो आपके पास तो डेड स्टॉक हो ही जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर करने का पैटर्न है वो कस्टमर के खरीदने के पैटर्न से मैच होना चाहिए। अब ये खरीदने का पैटर्न आपको स्टडी करना होगा, ये एक दिन में तो होगा नहीं, आपको कम से कम 1 साल देना होगा ये पूरा पैटर्न स्टडी करने में। ऐसा भी होता है कि वीकेंड पे आपका सेल बढ़ जाता होगा, वीकडेज पे कम होगा, या वीकडेज पे ज्यादा है वीकेंड पे कम है, महीने के फर्स्ट 15 डेज में ज्यादा है या लास्ट 15 डेज में ज्यादा है, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 कौन से वीक में कैसा पैटर्न है। तो ये चीज स्टडी करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप कैसे ऑर्डर प्लेस करोगे। एक और प्रॉब्लम होता है जब आप बहुत सारी चीजें रख लेते हो, मतलब आपके एसकेयू जो होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स आपके जो हैं वो एक्सेसिव है, मतलब वो इतने हैं कि आपके कस्टमर भी कंफ्यूज है कि आपसे खरीदें क्या। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक पायल जी बोल रही थी कि हमें वो एक डर होता है कि कस्टमर कहीं भाग न जाए, मतलब वो उनको जो भी चाहिए वो हमारे ही पास आकर के ले। पर बिजनेस in one way, Mawaj, it's better कि it's a one-stop solution, but in the other way, it's not good. करेक्ट। अगर आपके पास रिलायंस की तरह या अदानीज की तरह अगर आपके पास उतना पैसा है, अगर आप उतने कैश रिच हो तो आप लगाओ स्टॉक पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम बड़ा मल्टी ब्रांड करो, सारी कैटेगरीज रखो, 5 तला बिल्डिंग पूरा भर दो अपने स्टॉक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने 50 जन हायर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भी लेकिन डेड अगर स्टॉक तो हो गए महुआ जी। तो आप अगर एक्चुअली बुक ऑफ अकाउंट्स देखने जाओ ना इन मतलब जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं तो दिमाग खराब हो जाएगा उनका डेड स्टॉक देख के। वो कंपनीज भी रेड में है, सारी रेड में होती है। जिन जिन रिटेल शॉप्स में हमारा प्रोडक्ट जाता है तो कुछ कुछ एक्सपायरी के बाद जब रिटर्न आता है तो हमें भी वो भेजना पड़ता है स्टाफ को रिटर्न लाने के लिए। तो मेरा एक स्टाफ एक दिन सिर्फ ये बोला था कि मैडम एक गोडाउन से जहां से हम रिटर्न लाते हैं उस गोडाउन में इतना माल है कि उसको लेके मैं खुद अपना दुकान खोल सकता हूँ। ये लोग तो उसको फेंकने वाले हैं, अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ होता ना मैम तो वो लेके मैं खुद का दुकान खोल दूं। सिर्फ एक्सपायरी और डैमेज इतना रहता है, तो डेड स्टॉक सोचिए और कितना होगा। तो ऑब्वियसली उतना पैसा मतलब हम जैसे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है हमारे पास नहीं है। तो वाई शुड वी डू ऑल दैट एसकेयू। बिजनेस का पहला रूल है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, कुछ लोगों से ये सुनना पड़ेगा कि अरे आप ये भी नहीं रखते फिर बिजनेस क्यों कर रहे हैं। ये कॉमन सेंटेंस है, तो चमड़ा मोटा करके ये चीज सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब अपना नुकसान होता है तो ये लोग उसको भरने नहीं आते, राइट। तो वो सिर्फ सुनाने आते हैं कि आपके पास ये नहीं है, तो हाँ नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हमारे पास ये नहीं है, हम नहीं करते, राइट। और सॉरी मैं बीच में According- बोलना चाहूंगी, आपने जो भी कहा कि बोलिए। कोई आके हमें ये कहता है कि आपके पास ये नहीं है, तो काफी बिजनेस ओनर्स जो है वो सोच के भी उस चीज को अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अरे करेक्ट ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट। मैं एग्जैक्टली यही चीज बोलने वाली थी कि हम लोग क्या करते हैं ना, कोई 3-4 बार एक चीज सुन लिया कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो चलो यार उठा ही लो उस चीज को, खरीद लो, बना लो, जो भी है वो कर लो। तो हम उसको अपना वीकनेस समझ लेते हैं, बट करेक्ट, फाइनेंशियल कॉल क्या लेना है उसको पहले सोचना है, बिकॉज पहले अल्टीमेटली सोचना इट्स बिजनेस। एग्जैक्टली। मेरे को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ये वर्ड सिखाया है, कोलकाता का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके चेयरमैन ने ये एक सेंटेंस मुझे बोला था, जॉर्ज टेलीग्राफ ग्रुप के चेयरमैन ने, कि बिजनेस इज अबाउट पैशन नॉट इमोशन। जिस दिन आपके ईगो को चोट पहुंच गई आप गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे, तो ईगो को कभी सामने मत आने देना। आप क्या हो क्या थे ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सारा चीज भूल जाओ कि आप क्या हो क्या थे क्या हो। अपने घर पे तो सभी बादशाह होते हैं, लेकिन जब आप कस्टमर के सामने आते हो ना
तो उस समय रियलिटी चेक है, कस्टमर को जो बोलना है बोलने दो, हमेशा फिल्टर लगाओ, उसमें से जितना जरूरी है उतना ले लो, और कभी उसको ईगो पे मत लो, उसमें इमोशन मत आने दो, क्योंकि जैसे ही इमोशन जाएगा सारा डिसीजन गलत होगा। तो इसी अभी चीज के लिए कैन आई से समथिंग? यस यस श्वेता जी बोलिए ना। जैसे अपने 4 सामान बनाते हैं, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ए बेस्ट है, करेक्ट, प्रोडक्ट ए बेका नहीं, करेक्ट, प्रोडक्ट सी बेका, तो करेक्ट, सामान वही अच्छा जो बेका। प्रोडक्ट ए के ऑब्वियसली, बाद दिमाग खराब, प्रोडक्ट ए पे छोड़ दो, एकदम इमोशन मत एकदम लगाओ, सी जो बेका वही अच्छा। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जब चॉकलेट्स में अगर आप पूछे तो लिकर चॉकलेट्स बहुत सेल होता है। नाउ मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे रम या वोडका चॉकलेट्स तो छोड़ दीजिए, मतलब वो पसंद ही नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बनता है हमारा, इसलिए क्योंकि वो सेल सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे से आप पूछिए इस सीजन में, अभी विंटर में, व्हाट इज माय स्टार प्रोडक्ट? रम चॉकलेट। कैसा होता है टेस्ट पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन कस्टमर्स तो खा रहे हैं, राइट? तो ये चीज हमको देखना। अब मैं अगर वहां अपना इमोशन लगाने जाऊं, अभी कुछ दिन पहले कॉलेज में एक मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक एग्जीबिशन था जहां स्टूडेंट्स एकदम भर भर के रम चॉकलेट खरीद रहे थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, तेरे को शर्म नहीं आई कॉलेज में तुम रम चॉकलेट बेच रही हो? तो मैंने उल्टा अपनी मम्मी को बोला कि उनके मम्मी पापा को शर्म नहीं आई कि उनके कमाए पैसे से बच्चे रम चॉकलेट खरीद के खा रहे हैं? जब उनके मम्मी पापा को शर्म नहीं आई तो मुझे कहाँ की शर्म आएगी? ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट है, अगर आप वही चीज खरीदोगे तो मैं वही चीज बनाऊंगी। मार्केटिंग में जितना साल मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने बोला कि भाई देख, एथिक्स वही होता है जहां आप किसी का नुकसान ना करो, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल से आपको हटना पड़े जस्ट बिकॉज कस्टमर वो डिमांड कर रहा है, देन दैट इज बिजनेस, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया आपके एथिक्स पे नहीं चलेगी। तो आप अपने एथिक्स को अपने घर तक रखो, मार्केट में जो कस्टमर चाह रहा है आपको देना पड़ेगा। उसी रीजन हाँ, से पान पराग According to गुटखा you, ये सब बिकता है। बिकता है, एब्सोल्युटली। अकॉर्डिंग टू मी महुआ जी, तो मेरे को ये लगता है कि अपना स्टॉक अपने फोकस करें कि क्या है अपना आगे का क्या सीजन, उस है, हिसाब से अपना करेक्ट, प्रोडक्शन करें, एंड करेक्ट, सेल्स एंड प्रोडक्शन को एक साथ लेके चले, देन इट विल बी अ बेटर आइडिया एग्जैक्टली, एंड द डेट स्टॉक विल बी इन अ लेस लेस, करेक्ट। lesser, dead stock will अब be lesser. नाउ So Mahua ji, my सॉल्यूशंस, राइट, हाँ, yes, so actually we have a lot of questions. So my second question is factory outlet the best way to get rid of dead stock? मैं ये नहीं मानती हमेशा कि फैक्ट्री आउटलेट इज द ओनली सोल्यूशन। जब Okay. आपके पास डेड स्टॉक है तो इसका मतलब आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है, राइट? आपका पैसा क्या सिर्फ स्टॉक में फंसा हुआ है? कभी आप सोच के देखना कि सिर्फ पैसे में नहीं, आपका जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस स्पेस का भी या तो आप रेंट दे रहे हो या तो वो स्पेस आपने खरीदा हुआ है, वहां भी आपका पैसा जा रहा है। तीसरा, आपका पैसा फंसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक एम्प्लॉय जो उसका ध्यान रख रहा है, उसको साफ कर रहा है, उसे भी आप पे कर रहे हो, तो उसमें भी आपका पैसा जा रहा है। डेड स्टॉक आपके पास जब पड़ा हुआ है तो वो जितना दिन जाएगा उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट करके हम उस डेड स्टॉक को मूव नहीं कर सकते। तो डेड स्टॉक को मूव करने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इजी उपाय हो कुछ है। क्या है? सबसे पहला है, कस्टमर को गिफ्ट देना स्टार्ट करिए। कैसे गिफ्ट? वैसे गिफ्ट जो आपके प्रॉफिट मार्जिन का 2-3-4% में आ जाए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो गिफ्ट मिलने से होता यह है कि मार्केट सर्वे ये बोलता है कि आप जब बाई वन गेट वन फ्री करते हो ना, उससे 30% ज्यादा सेल होता है जब आप गिफ्ट देते हो, क्योंकि गिफ्ट इज मोर अट्रैक्टिव देन 30% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट या बाई वन गेट वन। हमेशा कुछ भी एक गिफ्ट ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। Free gifts always attracts फ्री everyone. गिफ्ट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। नाउ डेड स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है, वो पैसा तो आपका गया समझ के आप उस चीज को रखे हो। आप क्या करो कि उस डेड स्टॉक का जो खरीदा हुआ कॉस्ट है, मतलब जो बाइंग कॉस्ट है, उसका हिसाब लगा के कोई एक सुपर प्रोडक्ट जो आपका चल रहा है उसके साथ इसका बंडलिंग ऑफर करो। मतलब जैसे आपका सारा नाइट गाउन पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है,
तो आप ऑफर्स ऐसे दो कि कोई भी आपसे 3 कुर्ती ले तो एक नाइट गाउन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। अब वो जो नाइट गाउन आप दे रहे हो, ऐसे भी फेंकने वाले थे वैसे भी फेंकने ही वाले थे, कम से कम उसके बहाने 3 कुर्तियां तो निकल गई। तो इसको हम लोग बंडलिंग बोलते हैं। और कस्टमर को तो नहीं पता कि आप वो फेंकने वाले हो, तो कस्टमर को लग रहा है कि हम 3 कुर्ती खरीद रहे हैं, उसके बदले एक ईयररिंग हो सकता है आपने दे दिया, या कोई गले का चेन दे दिया, कुछ भी। इसको हम बंडलिंग बोलते हैं कि आप एक कुर्ती खरीदेंगे 1000 रुपया दाम है, 2 कुर्ती खरीदेंगे 1800 रुपया दाम है, आप 2 कुर्ती और 2 नाइट गाउन एक साथ खरीदेंगे तो मात्र 2500 रुपए में हम आपको दे देंगे। तो वो आदमी इसको क्या आप मवा जी, इसको आप थोड़ा सा मतलब गारमेंट्स का छोड़ के कोई और एग्जांपल लेके बताइए हाँ इसी चीज को, एग्जैक्टली कोई होम जैसे फर्निशिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ, लेके। जैसे मान लीजिए आप पर्दे सेल करते हो, ठीक है, आप फर्निशिंग सेल करते हो, पर्दे हैं, तो आप बोल रहे हो कि मेरे से अगर आप 2 दरवाजे का पर्दा लेते हो सेट ऑफ 2, तो वो हम आपको 2000 रुपीज में दे रहे हैं। अगर आप हमसे सेट ऑफ 2 का 2 पेयर लेते हो तो हम आपको वो 3500 में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका पर पर्दा कॉस्ट कम हो गया। अब आप बंडलिंग में आ रहे हो इसलिए क्योंकि आपके पास हो सकता है कि से टेबल क्लॉथ नहीं सेल हो रहा है। आज के दिन सब लोग ग्लास टॉप लगा दिए हैं या फैंसी रेजिन टॉप्स लगा रहे हैं, तो कोई टेबल क्लॉथ नहीं खरीद रहा, लेकिन आपके पास टेबल क्लॉथ का स्टॉक भर गया है। तो अब आप क्या करोगे कि 3500 में 4 पर्दे मिल रहे थे, अब आप 4000 में 4 पर्दे प्लस 4 टेबल क्लॉथ दे रहे हो। अब सोचो कस्टमर का, अब वो सारे टेबल क्लॉथ तो आप ऐसे भी फेंकने वाले थे, हो सकता है वो आपने 100 रुपए में खरीदा हो या 150 में खरीदा हो, तो आपका खरीदा हुआ कॉस्ट कुछ हद तक आ गया, और साथ ही साथ 4 पर्दे बिक गए क्योंकि आप 4 पर्दे के साथ 4 टेबल क्लॉथ दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल। या मान लो आप ज्वेलरी में हो, तो आपने मान लो झुमका स्टाइल का आपका सारा इयररिंग्स पड़ा हुआ है, कोई झुमका खरीद नहीं रहा, लेकिन चांदबाली हिट है, चांदबाली बिक रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि अगर कोई आपसे 2 चांदबाली लेता है तो सिर्फ 50 रुपए देने से एक झुमका भी वो साथ में ले सकता है। 2 चांदबाली का मान लो प्राइस आता है 800 रुपया, तो 800 के साथ 850 दे दो, एक झुमका भी आपको साथ में मिलेगा। But Mahua ji, what about real jewelry? What about real jewelry? Now, real jewelry में क्या आता है? You are talking of gold jewelry or silver jewelry? No, gold and diamond Gold jewelry. and I'm diamond. into gold and real diamond jewelry. Right. तो सबसे बड़ा बात है कि इफ यू आर इनटू रियल गोल्ड, आपका तो जितना डेड स्टॉक हो उतना अच्छा है। Making what I was offer supposed to पर tell. we are into fashion jewel fashion नहीं, I ना was just fashion. joking. I was just Yeah. joking. गोल्ड का रेट तो बढ़ते ही जा रहा है उमा जी। रेट तो बढ़ता जा रहा है पर डिजाइन रेट तो बढ़ रहा है। आउटडेट होते ही है ना उसमें भी। करेक्ट करेक्ट। मैं अपने यहाँ देखे हुए 1 या 2 एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड ने किया हुआ है, उनका भी रियल गोल्ड का था। तो रियल गोल्ड में उन्होंने क्या किया, जो इयररिंग्स थे, कुछ अच्छे इयररिंग्स, कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स के इयररिंग्स का पीछे से डंडे को हटा के, मतलब दे डिड सम लिटिल इंजीनियरिंग ऑन दैट, डंडा हटा के दे स्टार्टेड पुटिंग इन दोस पिन्स और इयररिंग्स का ब्रोच बना दिया, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट टू मेन ऑल्सो, क्योंकि सूट के ऊपर जैसे ये बिजनेस सूट पहन के ना यहाँ पे एक अच्छा से ब्रोच लगाया जा सकता है, एंड दीज ब्रोच पिन्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ओके, ठीक है, सिल्वर में मैंने लास्ट अभी एक मीटिंग में, BNI मीटिंग में ही मैंने देखा कि चांदी का वो जूड़ा में लगाने वाला ऐसे ब्रोच जैसे आता है ना, अब आज के दिन में बहुत कम लोग वो यूज कर रहे हैं जूड़ा में लगाने के लिए, तो वो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उन पे उन्होंने पिन लगा के यहाँ पे ब्रोच बना दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था, सिर्फ मैं बोल ये रही हूं कि आपको थोड़ा सा स्टडी करना है कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आपको अगर जरूरत पड़े, हाँ आपका लॉस मेकिंग चार्ज है डेफिनेटली, क्योंकि आपने कारीगर को पैसा दे के वो बनवाया है, अब आप वापस उसको पिघला के जब बनाओगे तो वापस आपका मेकिंग चार्ज जाएगा, बट एटलीस्ट अगर उसमें मूवमेंट बढ़े, अगर वो प्रोडक्ट्स आपके सेल हो। पहला तो ये है कि अगर आप फैशन ज्वेलरी में हो, मतलब असली सोना का काम अगर नहीं कर रहे हो,
तो आपके लिए बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर डेड स्टॉक है तो वो डेड स्टॉक है, अगर वो असली सोना का नहीं है। इफ इट इज अ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी लाइक कुंदन एंड ऑल दैट, जो कि जड़ाऊ, ये सब जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में आता है, जो रियल नहीं है, ठीक है, अगर रियल है तो उसका तो अप्रिसिएशन होगा, अगर रियल डायमंड है तो उसका तो फिर भी वैल्यू बढ़ने के चांसेस है, आज नहीं तो कल अगर बिकता है तो फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम है तो उसका तो कोई अप्रिसिएशन नहीं होने वाला है। तो कॉस्ट्यूम में आपको ये बंडलिंग ऑफर्स का आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बंडलिंग आपको उस समय करना पड़ेगा कि जो सेल हो रहा है उसके साथ जो सेल नहीं हो रहा है साथ में दे दो। और ये बहुत कॉमन ऑफर है। आप लोग जब साबुन खरीदने जाते हो कभी, तो देखोगे 3 के साथ चौथा साबुन एक साथ आ रहा है, 4 साबुन का पैक आता है, उसमें एक साबुन बहुत गंदा होता है जो कि हमें किसी को पसंद नहीं होता, और वो साबुन को पुश किया जाता है। या कभी कभी बड़े पाउडर के साथ एक छोटा पाउडर दिया जाता है, वैसा वाला वैरायटी छोटा पाउडर का जो कि सबसे गंदा होता है, जो कोई नहीं खरीद रहा होता है, लेकिन उनको वो स्टॉक निकालना है, ठीक है। तीसरा उपाय है आप क्लियरेंस सेल पे डालो। एकदम सीधा सिंपल सा बात है, भाई मेरा सेल चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, ऑन रियल ज्वेलरी वी नॉट गिव डिस्काउंट ऑफ 100% इन मेकिंग चार्ज। मीनाक्षी जी, किसी भी चीज को जब आप 100% फ्री कर देते हो ना, तो आपका क्वालिटी के ऊपर लोगों को क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, आपकी वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि, फिर उनको ये लगेगा कि आप एक्चुअली गोल्ड ही दे रहे हो ना, कुछ और तो नहीं दे रहे हो, तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप 50% डिस्काउंट दे दो, 60% डिस्काउंट दे दो, लेकिन कभी 100% मत दो। आप 15 दिन का एक कोई अच्छा सा ऑफर निकालो कि इस 15 दिन में हम 70% 75% ऑफ देंगे मेकिंग चार्ज पे, ठीक है। अगले परचेज पे भी आपको हम 50% ऑफ देंगे मेकिंग चार्ज पे, पर 100% वाला चीज आप कभी मत बोलना, क्योंकि फिर आपके ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पे डाउट आएगा। एक चीज हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी, कितने बजे? Everyone, please mute themselves. Hello. पायल एक बार सबको म्यूट कर दो, देन अगेन Yeah, I'm doing that. बहुत डिस्टरबेंस। रीटा गोयल जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। महुआ जी, सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। इट्स ओके। देखिए, कभी कभी ना एक उपाय हो सकता है कि आप अपने जो वेंडर हैं उनसे डील करिए कि अगर मेरा कोई डेड स्टॉक होता है वो हम रिटर्न करके आपसे फ्रेश माल उठाएंगे। कभी कभी सेलर इस पे तैयार होते हैं, हम इस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम कभी इस चीज को पूछते ही नहीं है बहुत बार। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिनसे स्टॉक ले रहे हो उनसे एक बार पूछ के देखो। हो सकता है 90% लोग ना कर दे, पर अगर 10% हाँ भी करे तो कम से कम वो तो बचेगा डेड स्टॉक। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अब सेलर आपको 100% नहीं रिटर्न देगा, हो सकता है कि 50% पैसा वापस करे या 60% पैसा वापस करे, पर उसमें भी कुछ तो आपको मिल गया वापस। पूरा पैसा बर्बाद होने से कुछ मिल जाना अच्छा है। जब आप किसी भी तरह उसको बेच नहीं पा रहे हो तो जो आप, जिनसे आपने खरीदा उनसे एक बार कनेक्ट करो, या वही प्रोडक्ट बेचने वाले किसी और से कनेक्ट करो कि हमारे पास माल पड़ा है, हम आपको आधे दाम पे दे देंगे, क्या आप लोगे? हमारे पास पड़ा इसलिए है क्योंकि हम इस चीज का बिजनेस और नहीं करेंगे, या हम कुछ और नया करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम इस स्टॉक को मूव करना चाहते हैं, तो हम आपको आधे दाम पे ये दे देंगे, आप ले लोगे हमसे? खोज खोज के देखो कि ऐसा कोई आपको मिलता है कि नहीं। ये एक उपाय है। एक बहुत मजेदार उपाय है जो कि आपके लिए डबल बेनिफिट हो सकता है। बहुत बार कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं उनके सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए कि हमें कुछ डोनेशन चाहिए, आप कुछ प्रोडक्ट डोनेट करो या कैश डोनेट करो। तो हमारे जैसे छोटे बिजनेस कैश तो डोनेट बहुत ही रेयर कर सकते हैं, मतलब हम लोग कभी कर ही नहीं पाते ऑनेस्टली, उतना कैश हम कभी आंखों से ही नहीं दिखता हमें, तो कहाँ से डोनेट करें। हमारे पास जो होता है वो है स्टॉक। अब ये जो स्टॉक आपका नहीं चल रहा है, फूड के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फूड में एक्सपायरी होती है, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है आपके पास पिलोस पड़े हो सकता है आपके पास ब्लैंकेट्स पड़े हो, बेड कवर्स पड़े हो, या हो सकता है कुछ कपड़े पड़े हो पुरानी, तो इफ पॉसिबल आप उस डेड स्टॉक को डोनेट करो एज पार्ट ऑफ योर सीएसआर। आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप उसको डोनेट करो,
और उस चीज पे आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। So how to connect with them, महुआ जी? ये हर कंपनी का अभी रूल है, कोई भी कंपनी में यू हैव टू मतलब उनके प्रॉफिट का 2% इज कंपल्सरीली गोइंग फॉर CSR, किसी भी कंपनी में दिस इज अ रूल अभी। तो आप कोई भी कंपनी को अगर बोलो कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो हम डोनेट करेंगे या हम एकदम कम दाम पे बेचेंगे, तो आपको कोई ना कोई कंपनी मिलेगी, एनजीओज मिलेंगे, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो लोग ये काम करते हैं। रोटरी क्लब वाले तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ ये काम करते रहते हैं, लायंस क्लब वाले करते रहते हैं। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि कैफे भी ऐसा ड्राइव ले सकता है कि वंस अ ईयर प्रॉबेबली किसी भी फेस्टिवल के पहले या कुछ भी यू कैन, आप देखिए, आप पुराना पहना हुआ फटा चिथड़ा तो किसी को दे नहीं रहे हो, यू आर गिविंग ब्रांड न्यू क्लोथ्स जो कि या तो फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया है या फिर लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वो आपका डेड स्टॉक है। इट इज नॉट कि आप पुराने पहने हुए कपड़े दे रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। नया कपड़ा है, फ्रेश है, अच्छे से इस्त्री करो, पैकेट करो। एंड इवन कैफे कैन टेक अ ड्राइव की ऑल ऑफ यू डोनेट समथिंग एंड वी विल डोनेट इट। इससे क्या होता है, हर एक का अपना प्रमोशन होता है, हर एक का एक गुडविल बढ़ता है मार्केट में। ठीक है, डायरेक्ट प्रमोशन तो हम इसको बोल नहीं सकते, बट इससे अपना गुडविल बहुत बढ़ जाता है कि ये लोग सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहे, दे दीज पीपल डोनेट ऑल्सो। ठीक है, जैसे हमारा फूड इंडस्ट्री में है, हमें भी डोनेट करना होता है, बट वी डू नॉट डू इट ऑन अ डेड स्टॉक, क्योंकि डेड स्टॉक हमारे लिए, डेड स्टॉक इज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली वो हम कहीं दे नहीं सकते। हमारे लिए डेड स्टॉक इज लाइक उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो व्हेनेवर वी डोनेट समथिंग, उसका एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे उसका ना रिएक्शंस आता है, लोग बहुत पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, और उस पॉजिटिव बोलने से भी ना बहुत पॉजिटिविटी आती है, लोग कनेक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो तो ये भी आपने एक अभी उपाय है। सोशल मीडिया का बात किया ही महुआ जी, सो माय क्वेश्चन इज लाइक, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म और एनी वेबसाइट वेयर वी कैन सेल दिस डेड स्टॉक्स एंड ऑल? एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब खाली डेड स्टॉक क्यों, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर भी बेच सकते हो। अगेन अच्छा, एज आई रिपीट, दीज आर नॉट सेकेंड हैंड, दीज आर ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? तो even you can sell it on Amazon, you can sell it on Flipkart, you can sell it on Meesho, you can do it on eBay, then you can do it on many other such websites which are there. बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप लोग, मैं जो डॉक्यूमेंट भेजूंगी उसमें मैं पूरा लिस्ट भी बना दूंगी। देर आर मेनी सच लाइक फ्री एप्स, उसके बाद पुश करके एक है, बहुत ऐसा सारा वेबसाइट्स है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। ये सारी वेबसाइट्स पे लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, वहां पे ऑप्शन रहता है जी, कि आपको मेंशन करना है इज इट अ न्यू वन और इज इट एन यूज्ड वन। तो जैसे ही आप ओके, न्यू वन पे देते हो, उसकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग वो चीज ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं। ईबे भी वैसा ही है, ईबे पे भी आप कर सकते हो। OLX पे जैसे पहले था कि यूज्ड प्रोडक्ट्स आप कर सकते थे, OLX पे अभी नए प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। तो ऑनलाइन पे तो आप कहीं भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग लाइव ऑल्सो ऑन दीज विमेन सेलिंग ग्रुप्स, बहुत है फेसबुक में विमेन सेलिंग ग्रुप। अगर आपको खुद नहीं करना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग उपाय होता है कि अभी जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, उनको थोड़ा इजी मनी चाहिए होता है, क्योंकि अभी बच्चों के डिमांड्स बहुत बढ़ गए हैं। उनको कैफे जाना है, उनको लाउंज जाना है, उनको पार्टी करनी है, उनको ड्रेसेस खरीदने, उनको बहुत पैसे चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट्स लेकर के आपके लिए लाइव करके वो चीज सेल कर देंगे। ऐसे बहुत सेलर्स होते हैं जो लोग दूसरों से प्रोडक्ट्स लेते हैं और वो सेल करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो यस प्रीति जी, इन्फ्लुएंसिंग प्लेज अ बिग रोल, एब्सोल्युटली। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग, ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, मतलब नॉट प्रॉपर इन्फ्लुएंसर्स, बट ऐसे कुछ लोग जिनकी वीडियोस लोग पसंद करते हैं एंड ऑल दैट, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। मैं कोलकाता में कम से कम ऐसे लोगों को 2-3 जन को जानती हूँ, जो लोग क्या करते हैं ना, वो आपका मिंत्रा बोलो या फ्लिपकार्ट बोलो, उनका जो रिटर्न होता है, मतलब जो कस्टमर रिटर्न कर देता है, नहीं खरीदता है, उसका हर दिन का लिस्टिंग निकलता है। ये लोग सब उस ग्रुप में होते हैं, तो वहां से लिस्टिंग निकलता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पूरा एक कार्टन खरीदना होता है।
तो वो पूरा ऐसे कार्टन का प्राइस देके उनको ले लेना होता है। अब उसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता होता। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कहीं का नहीं बिका हुआ माल या रिटर्न माल खरीद के फिर उसको डिस्काउंट में आगे बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे स्टाफ होते हैं जो लोग मेला और ये सब में बैठ के ये माल निकालते हैं। तो आपको तो नहीं देखना कि वो बिक कहाँ रहा है, आपको अपने डेड स्टॉक पे अगर 50-60% रिकवरी भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। जिसमें आप 100% लॉस सोच के बैठे थे, उसमें अगर 50-60% रिकवरी हो जाए तो वो भी अच्छी रिकवरी है। ठीक है। डेफिनेटली। सपना जी, ये कनेक्शन ना सबसे अच्छा सोशल मीडिया पे बनता है। आप जो विमेन सेलिंग ग्रुप्स है वहां पर अगर आप पोस्ट डालना शुरू करो दैट आई हैव सम फ्रेश स्टॉक, आई हैव न्यू स्टॉक, या ऐसे ही कुछ न्यू क्लोथ्स विथ मी, न्यू थिंग्स विथ मी, एंड आई एम लुकिंग फॉर सेलर, तो ये सेलर ही आपसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग के पास भी बहुत ऐसे सेलर्स आते हैं जो बोलते हैं आप चॉकलेट्स बना दो, हम सेल करेंगे। तो हमारा काम होता है सिर्फ बना के उनको दे देना। सिमिलरली आपसे भी वो लोग स्टॉक खरीद लेंगे, कम में ही खरीदेंगे, करके उस पर थोड़ा सा मार्जिन डाल के ये लोग निकाल देते हैं। और उसके बाद जब वो लाइव देख के मेरे जैसे लोग खरीद रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं कि वो मतलब आपसे खरीदा हुआ है या माल आउट ऑफ फैशन है या क्या है। मुझे तो कम दाम पे कुर्ती दिख रही है खाली, तो मुझे लग रहा है कि ये कुर्ती दुकान में मैं खरीदने जाती 1000 देना पड़ता, यहाँ तो 600 में मिल रहा है मेरे को। तो एज अ कस्टमर मुझे तो कुछ नहीं पता। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। एक अगर आपकी खुद की टेलरिंग या मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो होम डेकोर हो, ज्वेलरी हो, क्लोथ्स हो, जो भी है, तो मैं एक सजेशन ये दूंगी कि आप उस पर थोड़ा सा कुछ काम करके देखो। हो सकता है कि गारमेंट्स का थोड़ा बहुत डिजाइन इधर उधर करके शायद आप बेच सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बड़ा दुपट्टा का स्टॉक हो गया है तो आप उसका कफ्तान बना दो, जैकेट्स बना दो। और अभी जैकेट्स और कफ्तान तो बहुत बिक रहा है और उसको आप कम दाम पे बेच सकते हो क्योंकि वो आपका डेड स्टॉक था। तो एग्जैक्टली सपना जी, रिक्रिएट ओल्ड स्टफ। मैं जस्ट एग्जांपल्स बोल रही हूँ कि एक दुपट्टे को ऐसे फोल्ड करके उसका गला और हाथ निकाल दो अगर, तो वो जैकेट बन गया, राइट। और अभी फैशनेबल क्लोथ्स में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और थोड़ा सा मतलब थोड़ा इडिंग बिडिंग ये वो सब चलता है। मतलब हम लोग भी खोजते रहते हैं कि थोड़ा अजीब सा देखने में कुछ मिल जाए, राइट, क्योंकि उसी से अभी थोड़ा कुछ सा अलग, वो मिल कुछ रहा है। अलग हाँ, जो सब कुछ मांगते अलग हैं। मिल जाए। मतलब मैंने जो पहना वो और किसी ने नहीं पहना। हाँ, तो मेरे पापा जैसे हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं कि तू फटा पहन के निकल जा, देख कोई नहीं पहना होगा, एकदम फटा हुआ पहन के निकल जा, मतलब एक गारंटी है कि किसी ने नहीं वो भी पहना। फैशन बन जाएगा। ठीक है, सो तो मैं पापा को बोलती हूँ पापा ये मत बोलो लोग फटी जीन्स भी पहन रहे हैं अभी, तो बच्चों का ये अभी ट्रेंड है, तो सो टॉर्न इससे ही जीन्स का। रिलेटेड एक क्वेश्चन था सब महुआ जी कि अपना हाँ। जो ये डेड स्टॉक फैशन इंडस्ट्री का है, ये इसका हम्म। परसेंटेज कुछ आइडिया है आपको कि हाँ। क्या होना चाहिए, या कोई भी अदर फैशन, बिजनेस का? एग्जैक्टली जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है उनका डेड स्टॉक कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनके टोटल स्टॉक में 15% से ज्यादा कभी भी उनका डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं कि हम कितना मैन्युफैक्चर करें और कितना नहीं। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग है कि आप कहीं से स्टॉक लेके सेल कर रहे हैं तो आपका मैक्स टू मैक्स 33% तक जाना चाहिए। ओके, तो आपका 33% से ऊपर अगर डेड स्टॉक है मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन है आपके बिजनेस का। इमीडिएट आपको वो स्टॉक निकालना है किसी भी तरह, ओके। क्योंकि 33% डेड स्टॉक का मतलब है 33% ऑफ योर वर्किंग कैपिटल इज स्टक, 33% of your space is stuck over there, 33% of your labor charge is going towards maintenance of that particular dead stock, right? And 33% is 1/3 of your total business. तो आपके टोटल बिजनेस का 1/3 से ज्यादा किसी भी हालत में आपका नहीं होना चाहिए ये चीज, डेड स्टॉक। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि एकमात्र कैफे में, कैफे जैसे बॉडीज में पॉसिबल है, वन ऑप्शन विच वी कॉल पार्टनरशिप। मतलब आप में से कोई कुर्ती कोलैबोरेशन, बना रहा है, कोलैबोरेशन वी कैन गिव इट अ नेम, कोलैबोरेशन, यस, पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन। कोई कुर्ती बना रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, आपके पास भी डेड स्टॉक, आपके पास भी डेड स्टॉक,
पार्टनरिंग करो, एक साथ इंस्टा पे या फेसबुक पे गिव अवे करो, या किसी एग्जीबिशन में एक साथ एक टेबल ले लो, 2-3 जना मिलके अपना डेड स्टॉक उस पे डालो, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया उस पे, और वहां से जिसका जो प्रोडक्ट निकल जाए। मान लो 10,000 का एक टेबल चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, 4 जन ने अपना प्रोडक्ट उसमें डाल दिया, राइट, हर एक का 2,500 का इन्वेस्टमेंट हुआ, और उस 2,500 के इन्वेस्टमेंट पे जितना भी डेड स्टॉक निकले वही तो फायदा है, वो तो जीरो होने वाला था। बट एग्जीबिशंस में तो महुआ जी अपने तो मतलब डेड स्टॉक क्यों निकालेंगे, अपने तो अपना जो फ्रेश है उसको प्रमोट करने के लिए प्रॉपर स्टॉल लेंगे ना। एग्जीबिशन में मैं बोल रही हूँ मेला टाइप जो होता है, मतलब अच्छा जहां आप अपना ब्रांड डालोगे ही नहीं, गलती से भी अपना ब्रांड अच्छा, नेम नहीं लिखोगे। हाँ हाँ, ठीक है मीनिंग ठीक है, पायल जरूरत पड़े, ओके। हाँ मैंने जरूरत पड़े तो अपने स्टाफ को बिठाओगे, खुद जाओगे ही नहीं, मतलब आपका चेहरा किसी को यस दिखना भी यस नहीं चाहिए। यस, ठीक है, मैं वैसा बोल रही हूँ कि किसी, हाँ रिमोट प्लेसेस एग्जैक्टली, मतलब जहां जिस मेले में आपको पता है कि भूल से भी आपका कस्टमर शायद ना जाए, यस उस टाइप गॉट के इट। जगह में, जहां बल्क में निकलेगा, सेल चल रहा है, हर कोई डिस्काउंट पे दे रहा है, उस टाइप के जगह पे 4 जन मिलके कोई एक या 2 स्टाफ को आप भेजो, या 2 जन मिलके एक स्टाफ को भेजो, प्रोडक्ट्स डालो, जो बिके सो बिके, वैसे करके आप निकालो। लेकिन ये सब चीज कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा इसलिए हो सकता है ऑनलाइन पर भी, कि आपके पास भी डेड स्टॉक, आपके पास भी डेड स्टॉक, दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं, और दोनों मिला के एक पैकेज बना दो, एक कुर्ती के साथ एक ज्वेलरी मिल रहा है एक साथ कॉम्बो पे, और क्या चाहिए, आप लोग व्हाट्सएप पे एक्सचेंज कर करके कलर मैचिंग कर लो, ठीक है, तो कलर मैचिंग कराया, मैचिंग इयररिंग्स, मैचिंग नेक पीसेस, मैचिंग बैंगल्स विथ क्लोथ्स, या आपका होम फर्निशिंग अगर है और किसी और के पास मान लीजिए वॉलेट्स और बैग्स ये सब है, तो होम फर्निशिंग के साथ बैग्स का कॉम्बिनेशन करके आप एक साथ, या होम डेकोर आइटम के साथ बैग्स का कॉम्बिनेशन करके आपने दे दिया, राइट। तो ये कैफे के लिए ये बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आपको तो पता है कि किसका क्या प्रोडक्ट है, राइट। तो आप, वंडरफुल टिप महुआ जी, मैम वेरी मैं गुड आइडिया। थैंक यू, हाँ मतलब और कैफे के लिए और बहुत इसमें पॉसिबल है। आई फील इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि अपना गुडविल क्रैश नहीं होता, यू आर गोइंग टू अ प्लेस Yes. वेयर ब्रांड यू आर इमेज कहीं अननोन। पे भी कुछ भी यस सफर नहीं यस कर रही है। हाँ, और आप Yes. लोग ना इस चीज को मतलब कब कर सकते हो, मान लीजिए आप में से 2 जन का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, मतलब बिजनेस का एनिवर्सरी, या बिजनेस Yes. का बर्थडे है, या बिजनेस का कोई एक ऐसा है, तो आप उसको एनिवर्सरी मंथ ऑफर या बर्थडे मंथ ऑफर टाइप करके कर सकते हो। तो इससे लोगों को भी डाउट नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई सेलिब्रेशन ही चल रहा है, तो किसी भी फेस्टिवल को या अपना कोई भी एक ऐसा ओकेजन को टारगेट करके 2 जन 3 जन मिलके ऐसा कोलैबोरेशन कर ही सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है जहां लोगों को आपके ब्रांड वैल्यू पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ब्रांड को बचा के करना है मेले और ये सब में, वहां आप खुद जाओगे ही नहीं, आपका स्टाफ जाएगा, और रिमोट प्लेसेस पे या मतलब जो मैदान में मेला होता है, मतलब जो बोलते हैं ना खुला मैदान में पंडाल करके जो मेला टाइप्स होता है, जहां आप बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए, उन सब जगहों पे जाके भी आप सेल कर सकते हो, ठीक मैम है। ये तो Thank you, Mavaji. Just a last question from my side, then I will hand over the podium to Ranjana. So, is it a good idea to slow down production at off-season to minimize cost, as to bear only the fixed cost and not the variable? यस, आई वुड से दैट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, इफ यू आर डूइंग योर ओन प्रोडक्शन, then during off season, when you realize that the sales are down, when you know demand is less, pay salary to your staff, but do not make them work. The reason being कि रॉ मटेरियल भी फिर आपका उसमें जाता रहेगा, सेल ऐसे भी हो नहीं रहा है, आपको सैलरी देना ही है, लेकिन साथ में अगर आप प्रोडक्शन भी चालू रख रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल भी खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, मशीन्स भी डेप्रिशिएट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और साथ में प्रोडक्शन हो रहा है पर वो सेल नहीं हो रहा है। तो आई हैव सीन पर्सनली, आइसक्रीम फैक्ट्री विजिट किया था कुछ दिन पहले, आइसक्रीम फैक्ट्री के लेबरर्स लोग इस सर्दी के मौसम में छत में बैठ के ताश खेल रहे थे, ठीक है। तो मैंने जो ओनर थे उस आइसक्रीम ब्रांड के, उनसे पूछा कि भैया ये लोग छत पे बैठ के ताश खेल रहे हो और आप इसका सैलरी देते हो? तो बोला बेटा विंटर में अभी डाउन है मार्केट, आइसक्रीम का कम जा रहा है, ये लोग को ताश खेलने दो, मैं इनको सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगर ये लोग आइसक्रीम बना दिए
तो मेरा रॉ मटेरियल गया, मेरा जो एसी का कोल्ड स्टोरेज चल रहा है उसका एक कोल्ड स्टोरेज से काम चल रहा है, दूसरा कोल्ड स्टोरेज चलाना नहीं पड़ रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है। उसके बाद ये लोग जब भी काम करता है तो इन लोग का ओवर टाइम ये वो देना पड़ता है। अभी सिर्फ टाइम पे आ रहा है, ताश खेल रहा है, घर जा रहा है। ये एक ही महीना सर्दी होता है ना अपने यहाँ पे, तो ठीक है 2 महीना डाउन जाएगा, खेल ले ताश जी भर के, बाकी 10 महीना तो मैं देखूंगा ना इनको, 2 महीना खेल ले ये लोग ताश। दैट वॉज अ गुड लर्निंग कि ये बिठा के सैलरी देंगे लेकिन वेस्टेज नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इट्स डेफिनेटली ट्रू पायल जी कि अगर आपका प्रोडक्शन खुद का है और आपको पता है सेल नहीं होने वाला है तो अननेसेसरी प्रोडक्शन मत करो। एग्जैक्टली श्वेता जी, यू सेव ऑन द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आप अगर सैलरी नहीं दे रहे हो तो आपके स्किल्ड लेबर भाग जाएंगे। एंड आई थिंक मेरे साथ हर कोई एग्री करेगा कि हम लोग बिजनेस में ताबड़तोड़ मेहनत कर लेंगे, हम सब एक्सपर्ट हैं, हम सब बहुत कुछ है, लेकिन लेबर के सामने तो ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। बेटा जॉब छोड़ के मत जाना भाई, सीजन के टाइम में हम क्योंकि उनसे वो डबल हमारा मेहनत करवाते हैं, तो basically वो इसीलिए अगर कोई हमारा 1-2 महीना बैठ भी जाए तो दिक्कत नहीं है। कोई तुम बेटा कहीं जाना मत, हाँ, तुम रह जाना जाओ, मत। टिक जाओ बस। because this is our asset. They are our Yes. asset. The reason is laborers are very scarce. हमारे पास काम बहुत है, लेबरर्स नहीं है। नहीं और हम जैसे मैं बोलती हूँ कि एज अ मैनेजमेंट प्रोफेसर मैं जाऊंगी 50 लाइन में खड़े हैं, बट द स्किल्ड वर्कर्स दे आर वेरी वेरी लेस इन नंबर। एक अच्छा मास्टर जी, एक अच्छा टेलर मिलना नसीब की बात होती है ऑनेस्टली। आज से करीब 10 साल पहले आई स्टार्टेड क्लोथ बिजनेस and within 3 months I closed down because I did not get proper tailor. I had to close down. मैंने मतलब I told myself कि मेरा जॉब ही सही है भाई, सैलरी आ रहा है, भूल जा बिजनेस। तो I had to. So obviously our skilled people are very very important। जो ज्वेलरी बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, they are very important। ठीक है, वो भी खुश हैं थोड़ा हल्का काम करके, थोड़ा सा उनको छुट्टी दे दो, कुछ भी करो, बट don't waste your raw material. That is the थैंक idea. यू महवा जी फ्रॉम माय साइड। एंड थोड़ा सा टाइम कम है तो हम थोड़ा सा फटाफट करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू गिव द पोडियम टू रंजना। शी विल टेक द फर्दर क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस व्हिच आर इन द चैट बॉक्स। ओवर टू यू रंजना। हेलो मैम, जैसे आपने वेबसाइट्स बताए थे कि जैसे ईबे हो गया, OLX हो गया, काफी मेंबर्स ये जानना मतलब नहीं पता हो कि इसको कैसे इनरोल करना चाहिए, तो एक बार उनके लिए जस्ट एक आप आइडिया। हाँ, ये जो सारे वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे रजिस्टर एज अ सेलर करके एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एज अ वेंडर या एज अ सेलर, ये 2 वर्ड आप खोजिएगा, एज अ वेंडर, एज अ सेलर। ठीक है, नाउ इन सारे रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स रहेगी। जैसे आपके पास ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास GST है या नहीं, कुछ जगह पे ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने बोला था फ्री अप या डीपॉप, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स में आपको जनरली इट इज मेड फॉर होम बिजनेसेस, फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, फॉर होम ग्रोन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इन कुछ कुछ वेबसाइट्स पे दीज थिंग्स आर नॉट कंपल्सरी। इवन ईबे में भी कंपल्सरी नहीं है। ईबे इज अ वेरी गुड प्लेस। यस, दे आर सेफ, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे कोई मॉनिटरी कमिटमेंट नहीं करना पड़ रहा है सपना जी। सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर, दैट्स इट। अब आपका प्रोडक्ट कोई जब खरीद रहा है तो दे हैव टू प्रीपे, देयर इज नो COD इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर ऑप्शन है COD का तो यू डोंट गो फॉर COD, ऑलवेज गो फॉर अ प्रीपेमेंट। तो आपको अपने सिर्फ प्रोडक्ट्स के पिक्चर देने हैं और ज्यादा कुछ करना नहीं है। सेकेंडली, मैं इन सारे चैनल्स को, मतलब इन सारे वेबसाइट्स को इसलिए बोलती हूँ देने के लिए क्योंकि यहाँ आप अपने उन स्टॉक को दे रहे हो जो कि आपका ट्रेंडिंग नहीं है, जो फैशन में नहीं है। क्योंकि बहुत बार डिजाइन्स कॉपी होने का डर होता है, बहुत बार आपकी नकल उतार ली जाती है, कॉपीज बन जाते हैं। तो ये वाला जो स्टॉक है, इसकी कॉपीज बनने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्टॉक ऐसे भी आपका बिक नहीं रहा। तो इन सारे वेबसाइट्स पे अगर आप जाकर के सेल करना चाहो तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, क्योंकि उनमें रिक्वायरमेंट होता है कि आपका नाम, एड्रेस दे दो, आपका बिजनेस का नाम दे दो
और मैक्स टू मैक्स वहां से आपको एक बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा जाता है। तो उस बैंक अकाउंट में तो सिर्फ आपको अपना नंबर और आईएफएससी कोड देना है बैंक का, और तो आप कोई इंफॉर्मेशन वहां दे नहीं रहे हो, तो योर बैंक अकाउंट ऑल्सो रिमेन सेफ। ठीक है, तो इसलिए ये सारे में सेफ्टी का वैसे कोई इशू नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज बेटर। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी करने से पहले, जैसे मैंने अभी बोला फ्री अप, तो आपको क्या करना है, फ्री अप पे लॉगिन करने से पहले आप गूगल में एक बार ये लिख के चेक करेंगे, फ्री अप फ्रॉड, फ्री अप कंप्लेन, फ्री अप केसेस, फ्री अप पुलिस कंप्लेंट, फ्री अप एफआईआर, ये सारे वर्ड्स लिख लिख के आप एक बार चेक करेंगे कि इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या। अगर इस तरह के कुछ आपको रिजल्ट मिलते हैं गूगल पे, तो आप वहां पे रुक जाओ, देन यू डू नॉट रजिस्टर। बट अगर आपको सॉलिड वैसा कुछ नहीं मिलता, कस्टमर कंप्लेन हो ही सकता है, लेकिन अगर सॉलिड कुछ इलीगलिटी आपको वहां पे दिख नहीं रहा है गूगल पे, देन दैट इज मोर और लेस ओके। इनफैक्ट हम लोग तो कभी किसी को हायर करने के पहले भी हम लोग यही चीज बोलते हैं कि ये सारे वर्ड्स एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत चीजों का आजकल जैसे पुलिस रिलेटेड एनीथिंग इज ऑनलाइन, सब चीज का रिकॉर्ड रहता है। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट पे ऐसा कुछ करने से पहले यू शुड चेक विद अ वर्ड फ्रॉड। और आप लोग भी खुद से भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वेयर टू सेल सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, वेयर टू सेल डायरेक्ट टू कस्टमर। इस तरह का करने से ना आपको बहुत वीडियोस भी मिलेंगे और बहुत सारे डेड स्टॉक भी निकलेंगे। एक इनफैक्ट आप लोगों से बात करते करते एक चीज याद आया, आप लोग ना यूट्यूब पे जाकर के देखोगे, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बड़ा बाजार और डिफरेंट प्लेसेस में जाके, जहां जहां जैसा आप लोग तो जैसे पूरे इंडिया से हो, तो आप लोगों के हर एक के जगह पे होलसेल मार्केट होगा। जैसे पुणे में रविवार पेठ है, या हर जगह पे अपना अपना जैसे होलसेल मार्केट होता है। वहां पे ये वीडियो वाले जाते हैं, प्रोडक्ट्स का वीडियो बनाते हैं, एंड आपका फोन नंबर डाल के दे पुट दिस वीडियो। इसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, आप लोग अगर YouTube के थ्रू उन लोगों को अपने अपनी सिटीज में, आपके सिटीज में आप देखो कि कौन ये वीडियोस बना रहा है, वैसे एक दो लोगों को कनेक्ट करो। ये लोग ऐसा वीडियो बनाने का 3-4-5 हज़ार लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वैसा अगर इनसे आप वीडियो बनवा लो अपने सारे डेड स्टॉक दिखा के कि हाँ हम इस चीज को ऐसे क्लियरेंस पे दे रहे हैं या इस चीज को हम ऑफ में दे रहे हैं, यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दी बिजनेस कस्टमर, मतलब जो आपसे बल्क में खरीद के बेचना चाहेंगे। ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये कोलकाता में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया है, दोज हु आर इनटू हार्डवेयर उन्होंने किया है, फैशन लाइफस्टाइल में कर चुके हैं, गिफ्टिंग आइटम्स में हो चुका है। सो दे हैव ऑल डन इट। इवन आई एम प्लानिंग टू डू फॉर माई वर्कशॉप कि ऐसे 2-3 हर सिटी में 2-3 अच्छे लोग होते हैं जो कि आपके वहां जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, एंड दे विल डू इट। तो इससे क्या होगा कि आप, और ये सारे वीडियो ना कस्टमर से ज्यादा बिजनेसमैन लोग देखते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा होलसेल पे अच्छी चीजें खोजते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोलकाता में हम लोगों को बहुत दिखता है ऐसा वीडियो, 10 रुपए में साड़ी, 15 रुपए में बैग, इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। तो वो सिर्फ खाली अटेंशन लेने के लिए होता है, बट अगर आप कनेक्ट करके उस जगह पे पहुंचते हो, उस दुकान में पहुंचते हो, तो आपको रियली में वहां से बहुत सारे बल्क में सामान मिल सकता है। मतलब मुझे मेरे कम से कम 3 वेंडर ऐसे ही मिले, उन वीडियो से मिले। मैंने बड़ा बाजार में 3 जगह पे पैकेजिंग मटेरियल के लिए वो वीडियो देख के कनेक्ट किया था, और वहां गई, दुकान पे पहुंची, तो पता चला कि हाँ, जैसा बोलते हैं 2 रुपए 5 रुपए में नहीं है, पर रीजनेबल प्राइस में मुझे वहां से जेन्युइन वेंडर्स मिले। तो आपको भी तो कोई खोज रहा होगा, हो सकता है कोई सेल करने के लिए खोज रहा हो। तो अगर आप भी ऐसे वीडियोस खुद भी बनाओ या किसी को बुला के बनवाओ जिनका फॉलोअर अच्छा है, तो भी ये फायदा हो सकता है। ये लोग साल में 2 या 3 वीडियो भी अगर आपका बना दें, यू आर डन। उससे ज्यादा नहीं चाहिए। साल मतलब हर 4 महीने पे एक बार खाली बना दो वीडियो। तो दिस इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू क्लियर योर स्टॉक। जब भी लग रहा है कि बढ़ गया, तो बस ये बड़ा बाजार। अच्छा ठीक है, मुझे भी खोजना होगा यूट्यूब पे। नाम तो मैंने उनका याद रखा नहीं था, वीडियो देख के खाली फोटो नंबर लेकर के कॉल करके पहुंच गई थी दुकान। पर आई विल श्योरली डू दिस, मैं करूंगी कुछ कुछ लोगों के लिए। मतलब 4-5 मैंने वीडियो देखा हुआ है, 4-5 लोग हैं, 2-3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी नंबर पायल जी को, तो वो आप लोगों को ग्रुप में बता देंगी।
सो दीज आर सम गुड पीपल हु कैन डू इट. दिल्ली का भी मैं 2-3 नंबर दे सकती हूँ, क्योंकि वहां के भी कुछ कुछ लोगों का मुझे पता चला है. मतलब आई गॉट वन वेंडर फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम देयर. तो मैं जहां तक खुद गई नहीं, पर वो वीडियो देख के मुझे पता चला. ओके. तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. जैसे अभी तक हमने सिर्फ सॉल्यूशंस की बात की है कि डेड स्टॉक को कैसे क्लियर करना है. द मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि दिस आर माय डेड स्टॉक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये अपना डेड स्टॉक है. देखिए, वो स्टॉक जिसको कस्टमर बार बार देख रहा है, कंटिन्यूअस वो देख रहा है, जांच रहा है, लेकिन कभी भी अपने बास्केट में डाल नहीं रहा है, मतलब खरीदने के ऑप्शन में वो कभी पहुंच ही नहीं रहा है. दैट इज आवर डेड स्टॉक. मतलब ऑप्शन में पहुंचने से पहले ही अगर वो रिजेक्ट हो जाता है. हर कस्टमर क्या करता है, अगर उसको एक खरीदना है तो 5 शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उसमें से एक चुनता है. तो अगर वो शॉर्टलिस्ट तक ही नहीं पहुंच रहा है, देन ऑफ कोर्स दैट इज अ डेड स्टॉक. लेकिन जब तक वो शॉर्टलिस्ट में आ रहा है, आप उसको डेड नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पसंद आ रहा है. इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस, बट इट इज अ चॉइस. तो जब आपका there is Shweta ji, there is a time tenure true for fashion industry. पर अगर आप उस टाइम टेन्योर को मानना शुरू करेंगे, तो हम जैसे होम ग्रोन बिजनेस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा बिजनेस को मानना. इन फैशन इंडस्ट्री, इन टूडेज टाइम, द टेन्योर इज 15 days. हर 15 दिन में हर गारमेंट रिटेल आप दुकान में जाओ, उनका शेल्फ बदलता है. ठीक है, न्यू अराइवल is a new arrival for 15 days. That is possible for trading, जो ट्रेडिंग कर रहे Now हैं. that is possible for trading या बड़े बड़े शॉप्स में. ठीक है, आप शॉपर स्टॉप में जाओ तो हर 15 दिन में उनका ये बदल जाता है, न्यू अराइवल बदल के वो न्यू अराइवल डिस्काउंट पे चला जाता है. मतलब कैलकुलेशन ये है शॉपर स्टॉप या इन जैसे दुकानों का, कि जब उनका नया प्रोडक्ट आता है तो वो 70 to 75% मार्जिन पे बिकता है. दे मेक अराउंड 75-80% प्रॉफिट ऑन दैट. उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जब वो 20% 30% डिस्काउंट होता है, तो वो उतना हिट किया, फिर जाता है 50% डिस्काउंट पे, फिर जाता है 70% डिस्काउंट पे. जब 70% डिस्काउंट पे भी नहीं बिकता है, तो वो डेड स्टॉक होके रिटर्न चला जाता है. और ये पूरा साइकिल करीब 3-4 महीने में कंप्लीट होता है. तो न्यू अराइवल इज ओनली फॉर 15 days. शायद और कम हो गया हो, मतलब आई एम सेइंग मे बी 2-3 years बैक, तो 15 days was the duration for new clothes. हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, we cannot do that. तो हम लोगों को 3-4 महीना तो कम से कम देखना पड़ेगा कि वो कपड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. तो 2-3 महीना में भी अगर नहीं निकले, तो उसपे थोड़ा बहुत चेंजेस करके, जिनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो तो अपना बुद्धि लगा सकते हैं कि इस पे ये डाल दिया, वो डाल दिया, कुछ और डिजाइन किया. एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है कि एक ही कस्टमर तो आपके पास बार बार नहीं आ रहे, घूम घूम के दूसरे कस्टमर्स भी आते हैं. तो जो आपको डेड स्टॉक लग रहा है ना, उसको अच्छे से क्लीन करो, उसको प्रेस करो, इस्त्री करो, अच्छे से फोल्ड करो, और उसको सबसे ब्राइट वाले स्पॉटलाइट के शेल्फ के नीचे रखो. लाइटिंग से बहुत फर्क पड़ता है. लाइटिंग एक पुरानी चीज को नया दिखाती है. तो जहां आपको हमारे हर एक के शोरूम में एक जगह होनी चाहिए जहां स्पॉटलाइट है, मिनिमम, इफ नॉट मोर. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रैक जो कि स्पॉटलाइट के नीचे हो. ठीक है. अगर फर्निशिंग है, तो फर्निशिंग में अरे सपना जी, बेचना ही तो सब कुछ है. एग्जैक्टली, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू कैन नॉट हेल्प इट. जिनका फर्निशिंग का काम है, आई एम श्योर उनका बुटीक का एक कॉर्नर तो होगा जिसको उन्होंने एक डमी रूम के जैसा बना के रखा हुआ है, 2 तरफ से पर्दे लगे हुए हैं, कुछ फ्लावर वास रखा हुआ है, ऐसा कुछ तो होगा. तो जो पर्दे बिक नहीं रहे ना, उसी को डिजाइन पे डाल लो, उसी पे डेकोरेशन करो, उसी से अपना वो कॉर्नर सजाओ. आके कस्टमर कम से कम 10 में से एक तो मिनिमम ये पूछेगा कि ये वाला पर्दा है क्या स्टॉक पे, क्योंकि उसको वो मतलब सजा हुआ दिख रहा है. दैट अट्रैक्ट्स. तो जो शायद पहले उसको फोल्ड सिचुएशन में पसंद नहीं आ रहा था, हो सकता है वो खुला हुआ उसको अच्छा लग जाए. और जो चीज उनको खुला हुआ अच्छा लगा था, उसको आप फोल्ड करके रखो, और जो फोल्ड था उसको खुला रख दो. तो यू कीप डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 3-4 months.
जगह को इधर उधर चेंज करना, लाइट के नीचे लाना, उसकी पैकेजिंग इधर उधर थोड़ा सा चेंज करना, बदलना, यू कीप डूइंग दिस। जब 3-4 महीने की मेहनत से भी अगर वो निकले ना, देन यू कंसिडर इट टू बी अ डेड स्टॉक, नॉट बिफोर दैट। बहुत गूगल पे ऐसे कहीं निकल नहीं जाते। देख रहे हो ये आपका वीडियो। सॉरी, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है एक मतलब टू सेल एक्चुअली वन थिंग। हाँ, अगर कस्टमर्स मेरे वीडियो देख भी रहे हैं तो ये आप ही की देन है। We are in a आपने अगर समय पे सारे खरीदा ट्रिक्स होता फिर वो तो हमें ये हमें नहीं ऐसे करना बोलेंगे पड़ता। कि आपने यही ट्रिक आजमाया है कि इसके लिए। हमारा तो हाथ पैर बंधा है, फूड है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हमारे लिए तो डिस्प्ले हाँ ये वो कुछ भी ज्यादा काम नहीं करता। पर हाँ, एग्जीबिशन में मैंने ऐसे चेंजेस करके देखे हैं कि जैसे जो मेरे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं पहले उनको पीछे रखती थी। मुझे लगता था अरे ये तो कोई भी खरीद लेगा। धीरे धीरे पता चला कि ये अच्छा है, ये मुझे पता है, इनको तो नहीं पता। मतलब वो उस मूवी के सीन की तरह कि मतलब मुझे पता है ये सीलिंग फैन है, इसको पता है ये सीलिंग फैन है, हेलीकॉप्टर को तो नहीं पता कि ये सीलिंग फैन है। तो उसी तरह मुझे पता है ये अच्छा प्रोडक्ट है, कस्टमर को नहीं पता, तो उसको फिर मैंने सामने सामने प्लेस करना शुरू किया। नेक्स्ट ये पता चला कि एग्जीबिशन वाले जो होते हैं वो लाइट हमेशा इनसफिशिएंट देते हैं। तो मैंने खुद के फोकस लाइट्स खरीदे। हाँ, धमाल, राइट। फिर मैंने खुद के फोकस लाइट्स खरीदे, फिर खुद से एलईडी स्ट्रिप्स खरीदा उस चीज को सजाने के लिए, जगह को करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इससे मैटर हुआ, इससे डिफरेंस तो हुआ। लोग अट्रैक्टेड हुए, लोग आना स्टार्ट किए। देन आई स्टार्टेड यूजिंग कॉन्ट्रास्ट कलर्स लाइक ब्लैक एंड रेड, और ये सब थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग वो ब्राइटनेस यूज करना शुरू किया। तो इट मेड अ डिफरेंस। ठीक है, कलर एक्चुअली मर्चेंडाइज में क्या होता है, जब भी हम रिटेल मर्चेंडाइज की बात करते हैं तो हमारे सातों सेंसेस इक्वली काम करते हैं। आपकी बुटीक में कभी भी आप बहुत अच्छा स्मेल दे के देखो, जब कस्टमर एंट्री कर रहा है आपका सेल बढ़ेगा। आप एक हल्का म्यूजिक चला के देखो, सेल बढ़ेगा। राइट, आपके शोरूम में अगर फील गुड फैक्टर आना शुरू हो, थ्रू साउंड, थ्रू स्मेल, थ्रू आईज, लाइटिंग अच्छी हो, स्मेल अच्छा हो, म्यूजिक अच्छा हो, लोग अपने आप वहां पे खरीदेंगे। क्योंकि हम जैसे ही थोड़ा सा वो फील होते हैं ना, बहुत स्लो म्यूजिक कभी नहीं चलाना चाहिए। स्लो म्यूजिक होने से खरीदना स्लो हो जाता है। म्यूजिक शुड बी लिटिल बिट मतलब जैजी, पेप्ड अप। तो उससे हमारा वो जो हार्मोनल वो होता है ना, कि थोड़ा सा डोपामिन बढ़ता है कि हाँ चलो चलो अब खरीदना, अब खरीदना है। तो हमेशा म्यूजिक थोड़ा सा एक्साइटिंग होना चाहिए, स्मेल नाइस होना चाहिए, ये करने से सेल होता है। हार्मोन्स बढ़ाने लोग क्लाइंट्स। हाँ हाँ, तो ये मतलब है, सेल होता है इससे। अब ये साइंस है, बायोलॉजी, हम क्या कर सकते हैं। तो इस चीज का हम लोगों को फायदा उठाना है। कपड़ों में लाइटिंग कैसे यूज करनी है, जैसे वार्म लाइट है या वाइट लाइट है, कहाँ क्या यूज करना है। वेनेवर यू हैव क्लोथ्स, हमेशा वार्म लाइट पे पास रखो, पर एक नॉर्मल लाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको नॉर्मल लाइट भी देखना है, नॉट ओनली द वार्म लाइट बट Yes, नॉर्मल yes. लाइट। तो दोनों फैसिलिटी होनी चाहिए। डेकोर आइटम्स है तो डेफिनेटली वहां पे आपको कलर्स मतलब लाइट के साथ खेलना है। कहीं पे एक डार्क कॉर्नर, कहीं पे ब्राइट कॉर्नर, ये सारा चीज कॉर्नर्स आपको करना है, कलर्स करने हैं। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेड स्टॉक को मूव करने के लिए ना, बहुत बार दुकान में शेल्फ का इधर से उधर प्लेस करना या क्या करना, कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, लोग पुराने स्टॉक को न्यू अराइवल बोल के भी रख देते हैं, और जस्ट बिकॉज इट इज अ न्यू अराइवल लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, डिजाइन पुराना है लेकिन वो न्यू अराइवल पे रख देते हैं। ठीक है, और हर चीज जायज है यहाँ पे, नथिंग इज इलीगल। बिकॉज मैं वही रिपीट कर रही हूँ, आप यूज्ड प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग समथिंग विच इज लिटिल बिट ओल्ड। तो डजंट मीन कि यू आर चीटिंग ऑन योर कस्टमर। आप किसी बेडशीट पे सो के फिर वो बेडशीट तो सेल नहीं कर रहे हो, इट्स अ न्यू बेडशीट, जस्ट दैट कि 3 महीने से वो बिका नहीं है, इसीलिए आप उसको स्पॉटलाइट के नीचे दे रहे हो। तो इसमें क्या गलती है? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट। तो ये सारा चीज आप आराम से ये सब चीज कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली टाइम इज लिमिटेड, तो हाँ हाँ हाँ, श्योर, इसके भी हम क्वेश्चंस लेते हैं। कीर्ति जी, एकदम। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I wanted to ask कि जैसे suppose to if like clearance sale का आपने बोला था कि if you want to move your stock we should put clearance sale। तो जब हम राइट, clearance sale लगाते हैं, अगर जैसे मेरा जो बुटीक है उसमें I invite people, I will only have to invite people for the sale वाला thing, but I want them to see my fresh stock also, कि उनको पता चले कि हाँ अभी ये खाली अगर clearance में बुलाएंगे तो उनको तो नया फैशन के बारे में पता नहीं चलेगा मैं क्या बना रही हूँ। I want करेक्ट। them to see
द फ्रेश स्टॉक ऑल्सो। तो हम्म। सेल के टाइम पे क्या मैं एक रैक ऐसा लगा सकती हूँ जिसमें मैं न्यू अराइवल्स लगा दूं, या उसमें कि उसमें भी कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देना चाहिए 5-10%? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कीर्ति जी। मैं अपने हिसाब से इसका आंसर करूंगी कि अगर आपको क्लियरेंस सेल देना है और नया स्टॉक कस्टमर को दिखाना है, तो मेक इट टू सेपरेट ओकेजन। एक ही ओकेजन में डोंट ब्रिंग इन टू थिंग्स। रीजन, व्हेन कस्टमर इज कमिंग फॉर सेल, ठीक है, वो उस माइंडसेट से आपके पास आ रहा है। पहला तो ये कि अगर आप अपने ब्रांड को वैल्यू देना चाहते हैं तो डोंट कॉल इट अ क्लियरेंस सेल। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप उनको एक इवनिंग कॉफी के लिए बुलाओ, मतलब यू से दैट कॉफी विथ करण जैसा, कॉफी विथ अस। ओके, इन आपका जो इनविटेशन जाएगा, आई इनवाइट यू ओवर अ कप ऑफ कॉफी। Say this in your invitation. Come today, या for coming 3 days, come down for a cup of coffee with us. ये बोलने से आपका वो क्लियरेंस और सेल वाला एटीट्यूड हट जाएगा। मतलब आप जब बोल रहे हो कि सेल, आई एम गिविंग अ डिस्काउंट सेल, प्लीज कम, तो पहला निकलेगा धत नहीं निकला, इसीलिए फिर से सेल देके बुला रही है, हम लोगों का पैसा लूटेगी। ठीक है, तो ये थॉट तो सबसे पहले हटाना है। So what you tell people is, come down. I want to, display. I have displayed a lot of stocks right now, जो कि शायद इतना स्टॉक मैं एक साथ कभी शेल्फ पे रखती नहीं हूँ. So I have done this. Come over for a cup of coffee with us. I invite you to a cup of. अब now people know why you are calling them, but आपके मुंह पे वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, and they will feel nice also कि आपने ऐसे किया. And even if it is a clearance sale, arrange for a cup of coffee या चाय with some biscuits and sandwich. That's it. आप एक टेबल सजा दो और उस टेबल पे कॉफी रखवा दो, चाय रखवा दो, बिस्किट रखवा दो, या सैंडविच रखवा दो, कुछ भी जितना आप अफोर्ड कर सको उतना ही, ज्यादा नहीं। ज्यादा करोगे तो लोगों को डाउट होगा, जितना कम रखोगे उतना लोग सही समझेंगे। इससे क्या होगा, वो सेल वाला माइंडसेट भी बन जाएगा, लोग आएंगे भी, खुश भी होंगे और बिना कुछ लिए जाएंगे नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आप अपना नया प्रोडक्ट भी लगा दे रहे हो, तो फिर वही सिचुएशन हुआ, आपका पुराना स्टॉक उसके आगे फिर गंदा दिखेगा, तो नए वाले स्टॉक को आप उस समय हटा दोगे। अगर लोग पूछें तो बताइएगा कि हाँ, हम एकदम कंप्लीट रिवैम्प करने वाले हैं स्टॉक को, तो मैं आपको बताऊंगी उस समय। अभी तो पूरा साल भर का हमारा पहला सेल या आखिरी सेल है या ऐसा कुछ है, इसीलिए हमने आपको कॉफी पे बुलाया। ये पूरा प्रोसेस होने के 15 दिन 20 दिन बाद आप कोई फिक्स्ड डे मत रखो, आप ऐसे ही कस्टमर्स को बोलो दैट वी हैव आवर फ्रेश स्टॉक अराइवल, कम डाउन टू आवर शोरूम। अब आने दीजिए लोगों को फ्रेश स्टॉक के लिए, तब तक आपका कुछ तो डेड स्टॉक निकल गया। जो बड़े शोरूम्स होते हैं उनका इतना बड़ा स्पेस होता है कि वो अपना पुराना स्टॉक नया स्टॉक एक साथ रख सकते हैं। उनके पास इतना कैपिटल भी होता है कि अगर उनका डेड स्टॉक नहीं भी निकला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब डेडिकेटेड 1 या 2 दिन का रख रहे हो अपना क्लियरेंस के लिए, तो उस समय फ्रेश चीज को सामने मत लाओ। महुआ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे वीकेंड, जैसे सपोज करिए कोई होमप्रेन्योर है, उसके घर में 2 स्पेस है जहाँ फ्रेश स्टॉक रहता है, एंड टू सम अदर स्पेस शी कैन पुट हर डेड स्टॉक फॉर क्लियरेंस। तो वो भी तो तरीका है ना कि आप वो भी अगर तरीका है। देखना चाहे तो वो अंदर आपका फ्रेश स्टॉक भी दे। करेक्ट, करेक्ट, मैम, यही मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 रूम है, 3 रूम है, देन प्लीज डू दैट। बहुत देखिए- कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि आप सेल नहीं लगाते हो, कि आप जब सेल लगाओ तो इन्फॉर्म करना, आप सेल लगाओ तो इन्फॉर्म करना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इन दैट केस जब हम उनको बुलाते हैं तो उनको तो ये बोलेंगे सेल लगाया, तब तो वो लोग अट्रैक्ट होके आएंगे कि हाँ, इनका हाँ, सेल लगा है। एग्जैक्टली, सेल लगाया है लेकिन आप कॉफी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, कर रहे हो, मतलब हाँ। आप उनको बता रहे हैं कि सेल लगाया है, पर आप उनको कॉफी चाय पे बुला रहे हैं। समझ गए? मतलब आप ऐसा नहीं कि बिना बोले धोखे से बुला रहे हैं, एक तीर दो आप बोल निशाना। के ही बुला रहे हैं, It पर आपके will be बुलाने का still, तरीका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। it will be मतलब we are connecting with them more as a permanent customers and also clearing a dead stock. यस, अगर आपके पास 2-3 कमरा है, एक्स्ट्रा जगह है, तो डेफिनेटली अपना नया स्टॉक लगाइए। मैं ये सोच के बोल रही हूँ कि आपका स्पेस लिमिटेड है,
अगर नहीं, अगर 2 या 3 रूम है तो डेफिनेटली नया, इसीलिए मैंने बोला कि जो बड़े शोरूम्स होते हैं दे कैन, नीचे है। ठीक है। तो अगर आपके पास 2 रूम है, 3 रूम है, आप जरूर से वहां पे न्यू स्टॉक जरूर लगाइए। और प्लस कॉफी चाय पे बुलाने पे यू इवन बिल्ड रिलेशनशिप एंड कस्टमर रिलेशनशिप बेस्ट। यस यस, हम बिजनेस में हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा तभी जब बाकी 2 B, विच इज बॉन्डिंग एंड बिहेवियर, ये 2 चीज बढ़ेगा। जब तक आपकी बिहेवियर अच्छी नहीं होगी और आप बॉन्डिंग नहीं करोगे कस्टमर्स के साथ, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होता। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू क्रिएट दैट बॉन्ड विथ योर कस्टमर। और अगर आप क्लियरेंस सेल में कोलैबोरेट करना चाहते हो तो दिस ऑल्सो कैन बी अ गुड ऑप्शन। आपका क्लोथ बुटीक है, ज्वेलरी वाले भी आपके पास आ जा रहे हैं और एंड यू आर डूइंग इट टुगेदर, सो दैट ऑल्सो कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। कॉस्ट भी डिवाइड हो गया एंड दोनों के कस्टमर्स वेरिड कस्टमर्स हो जाएंगे। वो भी अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे, हम भी अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे। एग्जैक्टली, आप कॉम्पीटिंग नहीं हो। मान लो एक के पास डेकोरेटिव सामान है, किसी के पास बैग्स है, किसी के पास ज्वेलरी है, किसी के पास साड़ी है, किसी के पास कुर्ती है, 4-5 जन मिलके कोलैबोरेट करो एंड डू अ सेल। Mahua ji, there are more questions for the Can we take PTG from Neera sort. Dokani? Neera ji, please unmute yourself. Yeah, good afternoon everyone. महुआ जी, मेरा लेडीज बॉटम वेयर का गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और जैसा कि आपने बोला कि टाइम टू टाइम हमें अपने एक्सक्यूज को कम करना है, चेक पे रखना है। तो अभी जैसे हम अपने कलर्स कम करने चाहते हैं, मान लो एक कॉटन पैंट है, उसका अभी हमने अगर 30 कलर में बना रहे थे, उसको हम अभी हाफ करके 15 शेड्स ही आगे बढ़ाएंगे और 15 शेड्स को हम बंद करना चाहते हैं। तो ये जो 15 कलर्स जो हम बंद करना चाहते हैं महुआ जी, उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो अब उसको कैसे सेल करें? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मुझे बताइए जहाँ पे कि हम बल्क में, जैसे अभी तक आपने जो फ्लिपकार्ट और ये सब बताया, ये स्मॉल क्वांटिटीज में इन पे बायर आते हैं, लेकिन अगर मुझे बल्क सेल करना है तो उसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है? आप ईबे पे भी बल्क सेल कर सकते हो या आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हो। यस, इंडिया मार्ट इज द प्लेस फॉर बिग थिंग। मतलब आपको अगर बल्क में सेल करना है तो इंडिया मार्ट से बहुत सेलर मिलते हैं। आप इनफैक्ट जस्ट डायल पे भी लिस्टिंग करके रख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं बल्क में। आप अगर आपको बाहर सेल करना है तो आप अलीबाबा पे भी अपना रजिस्टर करा सकते हो। मतलब देयर आर डिफरेंट सच प्लेसेस जहां बल्क में भी सेल कर सकते हो। इवन अगर आपने मीशो पे या अमेजन पे भी लिस्टिंग करवाया है, वहां भी डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे देखेंगे कंपनी का वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट दिया रहता है कि फॉर बल्क परचेजेस यू कैन कनेक्ट विथ अस। तो अगर आपका नॉर्मल से वेबसाइट पे भी अगर लिस्टिंग करते हैं तो वहां पर भी ये ऑप्शन आप डाल सकते हैं। तो थ्रू एनी सच वेबसाइट, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। और चूंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा विमेन सेलिंग ग्रुप में ध्यान से देखिए। बहुत विमेन आपको मिलेंगी जो आपसे बल्क में खरीद के सेल करना चाहेंगी, क्योंकि बॉटम वेयर एंड ऑल दैट इज अ वेरी कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ अस विमेन। हम लोग को सबसे अच्छा से पता है कि गिवन आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड आवर बायोलॉजी एंड एवरीथिंग, हम एक लेगिंग्स बहुत ज्यादा दिन पहन नहीं सकते, इट गेट्स डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। तो इट्स अ वेरी रेगुलर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो हम लोग मतलब बहुत फ्रीक्वेंट वी कीप परचेजिंग लेगिंग्स एंड ऑल दैट, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे सेलर्स को खोज के निकालो जो आपका प्रोडक्ट ले सके। और ये सेलर्स आपको मिलेंगे विमेन सेलिंग ग्रुप पे। बहुत ऐसे विमेन सेलिंग ग्रुप है, ऑल इंडिया विमेन है, बीइंग गॉर्जियस है, फिर बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिंग ग्रुप है जहां आपको बहुत सेलर दिख जाएंगी। आप वहां पे मेंबर बन के ज्वाइन करके एक पोस्ट खाली कर दो दैट वी आर मैन्युफैक्चरर एंड वी आर लुकिंग फॉर सेलर, तो आपको वहीं से बहुत कुछ मिल जाएगा। पैन इंडिया भी ऐसे ग्रुप्स हैं, तो यू कैन डू दैट। या अगर आपकी फैमिली में कोई यंग लड़की है जो कि ये ऑनलाइन सेल करना चाहती है, तो इट्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। आप तो मैन्युफैक्चरर हो, सो आप जिस रेट पे डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हो उस रेट पे कोई नहीं कर पाएगा। तो आपका जो डेड स्टॉक है, जो कि कलर्स चल नहीं रहा है, उसको लेके बोलो किसी को भी, आपकी फैमिली में हो या बाहर से भी, अगर किसी छोटी लड़की को, मतलब यंग लड़की को आप अगर हायर कर सको, दे कैन डू ऑनलाइन सेलिंग। और बहुत ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन सेलिंग में। एक एक दिन, एक एक घंटे के लाइव के बाद जो अच्छे सेलर होते हैं उनके 50-60 ऑर्डर तो मिनिमम आते हैं। तो आपको ऐसे भी आप अपना स्टॉक क्लियर कर सकते हो।
Now we're taking last question from Rosie Sethia, and then we open the podium for all. Rosie. Rosie ji, kindly. Hi, Mahua ji. Hi. So I don't have a question. I was listening to you regarding the playing of lively music in the store. So this is actually a personal experience. I had gone to Bangkok, and over there, there were 5 shops which were selling clips and rubber bands and all that. Usme there was one shop which was playing a very trending music and in a very loud volume. And I saw कि 5 shops में से all the customers were going to only that shop and buying because they were enjoying the music so much. They were all drawn to that store, and that store was like selling like anything, and the same stuff was there in the other 4, लेकिन वहाँ कोई music नहीं था. Nobody was even putting their feet in that. So I just wanted to share this with everybody. So much. Absolutely, absolutely. In fact, abhi Today we learned, Mahua ji, that music also plays a very important role in very selling. important role. Yes, Mood yes. lifter. It is a mood lifter. It's a mood lifter and good smell. Very, very necessary. Good smell. Thank you, Very necessary. स्मेल की तरफ ध्यान हमारा सबसे लास्ट में जाता है, पर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल तो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजर्स आ गए हैं. आप उसमें एसेंशियल ऑयल डालो, उसको चालू रखो, तो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो. तो वो रहता भी बहुत देर तक है. तो यू यूज डिफ्यूजर्स इन योर शोरूम्स एंड ऑल. तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा एग्जीबिशन जब होता है कभी कभी, तो हम लोग चोको वेनिला करके एक एसेंशियल ऑयल आता है जो कि एक वेनिला और चॉकलेट का स्मेल देता है. तो डिफ्यूजर में वो ऑयल डाल के वी डू इट, तो एक टू क्रिएट अ हल्का सा वो चोको 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 टाइप का एक स्मेल करने के लिए. तो सिमिलरली कपड़ों के साथ या डेकोर के साथ भी ऐसे कुछ अच्छे सोफिस्टिकेटेड स्मेल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो. Actually, music can be common for all products. Just but the smell part which you're saying, like I'm into jewelry, I can't think of it because that aroma will affect the product. Correct. आपको अल्कोहल से या किसी भी एसेंशियल ऑयल से you have to save your products. Absolutely. So you cannot think of too much of smell or anything, but what you can do is think of music and proper lights. Right. आपके लिए भी जैसे light is very very important. It will make a huge difference in the way your jewelry looks. महुआ जी, ये भी तो है कि एवरी बिजनेस हैज डिफरेंट, जैसे म्यूजिक का जो पिच है वो हर बिजनेस के लिए अलग है. अब जैसे गारमेंट में कोई शो बुटीक में घुसा, वहां बहुत पेपी म्यूजिक चल रहा है तो वो बहुत डाइवर्ट हो जाता है. तो ये डिपेंड करता है कि किसका तुम्हारा बिजनेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका म्यूजिक का मोड और पिच होना चाहिए. करेक्ट. और म्यूजिक का पेपी अगर आप चला भी रहे हो, लेकिन उसका साउंड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी लेस, जस्ट उतना जितना कान में पहुंचे. बट इफ यू आर इनटू होम डेकोर, देन इट शुड बी समथिंग वेरी सूदिंग एंड कंफर्टेबल, क्योंकि घर में हम वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहते हैं. Yes. तो people should feel very homely when they enter your decor या furnishing showroom. Point. So over to Sweta. Thank you. Thank you, Mahua ji, for sharing your insights on dead stock management. Today, I'm sure everybody has a take home. सब अपना अपना काम में कुछ ना कुछ तो आपका ऐड करेंगे. एटलीस्ट म्यूजिक तो पक्का ऐड करेंगे according to their own requirements. And now a very special thanks from Payal, Ranjana, myself, and Sapna, leaders of Group 2B, for joining the session. We hope everybody has benefited in their own business. Heartfelt gratitude to our founder Kavita Agarwal and our great mentor Sapna, and all our board members present for providing us this opportunity of learning. Can I ask Darshana to give us to speak few words? Darshana? Yes, hello. Yes. Sorry, I'm out, so I cannot turn on my video. But a very good afternoon, everyone. And it was indeed a very, very informative session. Thank you, Mahua ji. I am the director of cafe, but थोड़ी व्यस्त हूँ, बाहर हूँ, इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ. But I am really thankful कि आपने आज समय निकाला और बहुत अच्छी insights दी है. I am looking forward to one more session
बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगता ही रहता है फॉर एवरीबडी इन दिस एरा, जहां सबको क्लियरेंस सेल और सबको डेड स्टॉक की रिक्वायरमेंट हमेशा लगती रहती है. So let us see that we can plan a session more. And thank you so much for being part of Cafe today. थैंक यू ऑल सो मच फॉर द इनवाइट. इनफैक्ट अब तो मेरी बारी है कि आप लोगों से बिजनेस सीखने की. आई कम फ्रॉम अ कम्प्लीटली वर्किंग बैकग्राउंड एंड अ नॉन बिजनेस फैमिली. तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल, लर्निंग मोर इन बिजनेस एंड एवरीथिंग. तो थोड़ी बहुत जो मार्केटिंग की बुद्धि है वही मैं लोगों से शेयर करती हूँ, एंड आई डू माई बिजनेस ऑन दैट. So I would love to someday that learn. is really humble of you. Absolutely. I would say one thing Can in I this, say that your something? music concept has attracted me so much that now since I run a school, मुझे भी लग रहा है कि मैं हर एक फ्लोर में एक स्पीकर लगवाऊं, और जहां पे whenever children are walking in, you know, they should always have some music, you know, to their ears so that they feel good. So Yes. though I am not into any garment or jewelry, but this takeaway will be applicable in my perspective also, that I will try and arrange, you know, next year कि हर floor में एक कहीं पे music बजना चाहिए, so that it you know gives a different feel to the children and it welcomes them. Yes, I did that in my college. Like जब मैं while I was working, I was the assistant director of a business school. I was teaching MBA. तो आई हैड इम्प्लीमेंटेड दिस कि हर फेस्टिवल से पहले फॉर 7 days उस फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी म्यूजिक हल्का सा चलते रहता था सारा दिन कॉरिडोर में, हल्का सा, बहुत हल्का करके, तो दैट मूड ऑलवेज चेंजेस. एंड इन वन ऑफ द कॉलेजेस जहाँ हमारा चॉकलेट्स कैफेटेरियाज में भी, लाइक वी सप्लाई आवर चॉकलेट्स टू लॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज कैफेटेरिया. तो एक दो कैफेटेरिया में बोलने के बाद दे इम्प्लीमेंटेड इट कि कैफेटेरिया में एक हल्का सा म्यूजिक चलाना, कैफेटेरिया का सेल्स बढ़ गया है एक्चुअली, बिकॉज स्टूडेंट्स आके वहीं पे बैठना चाहते हैं कि पूरे कॉलेज में जब भी ब्रेक होता है तो कॉलेज से बाहर नहीं जाके लोग कैफेटेरिया में आ रहे हैं. म्यूजिक का दो एडवांटेज तो है ही है. एक तो इट इज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर एवरीबॉडी. Yes. And Yes. no age group, nothing is required, no discrimination, and it's a mood lifter. Correct. Mawuji, I would Can I request say you to something? share all the sites and websites and everything, so Sure. I can share it in the Sure. group and people will Absolutely. be more Yeah, visible to it. I just wanted to Thank say, you very can you just much, share the document because every information is so important for us that I don't want to miss out on any. And to keep Sure. so much in the head is a little impractical. So if it is in a document form, I can actually go line by line and do. And it Sure. can Yes, be a Mawuji, we Bible. will share it in the group. I will share it in the Yeah. group, and when Document. Mawuji Thank will you give so me, I will much. share it. The Yeah, document I will be share like all a informations Bible. given by Mahua ji in the group. Please follow the documents उसने जो भेजेगी. And thank you very much Mahua ji. मेरी तो कॉपी भर गई है नोट्स लिखते. It was so informative. The smell, the sound, ये हमको लगा कि best part है to attract your customer. And you are so humble. Thank you very much. Thank you. Thank आपका you so Payal, much. Payal, even I document, would like Mahua to ji. say something. Yes, Yes, Saroji, Saroji, please. go ahead. Yeah, Mawaji, it was a superb session, and so much of information was shared. I'm a psychological counselor by profession, and Oh, I feel that I can also add some of the tips to my sessions also, especially the smell. If yes. if the client gets a very good smell, the atmosphere will become more amicable. I'm very happy Yes. to join this session. Thank you, Ranjana, for calling me and Thank you. pushing me to join this. It was wonderful, very informative. Now Thank before you I all so much. end, Mahua ji, आपका document हमारा Bible होगा, reference point. Anytime go back to it. So true. I would like Nitika to say a few words. La. Hello, Mauvaji. It was pleasant listening to you, like everything from how to recognize your dead stock and what are the factors, how do you actually work on that. So everything was fabulously told. I was even the moment you're saying something, I was relating it to my business as yes, these are the points I can also imply. And the way you said that we should not say clearance sale. That word actually, someone also yesterday also told me the same thing, that we should always use specific words, exclusive words for our business products, so that people never feel that, oh, okay, it's a clearance sale or it's a leftover pieces. So many takeaways from you. And yes, as referred,
we are just looking for you for a document because I have not noted. I've missed noting out things. No worries. So, I'll send it. I'll send the documentation. Don't worry. Should I but you were close the excellent. meeting now? And like, it could go on forever and ever. Yeah. Like And that- instead of clearance sale, we use anniversary sale, which really Yes. attracts people. Yes. Yeah. So it's like yesterday also, like one piece, when single product piece is left. So we say no, it's last piece. So we say it's an exclusive piece left. So exclusive Limited design. edition. So Limited edition. yeah, one limited piece is there. So our words basically play the role. तुम लोग Good. अपनी सारी पोल खोल रही हो, एनिवर्सरी अब आएगा तो हम समझ जाएंगे. Girls, members, now we are on 115. सरोज महुआ जी ने ये बोला है कि आपका प्रोडक्ट जब तक क्वालिटी खराब नहीं है वो हाँ, तब तक बहुत अच्छा है. एब्सोल्युटली, आई एग्री. Yes. एंड सब मेंबर्स का प्रोडक्ट सच में इतना अच्छा होता है ना, हम लोग चूज नहीं कर पाते किसके पास जाए. Yes. I have heard a महुआ जी, इस lot बार आपको about- हम लोग कैफे पे, मतलब हमारा कैफे बाजार है ना, उसमें you will have to come. Sure. I will do that because मैंने भी कैफे के बारे में बहुत सुना है. I have a good friend who's a cafe member, Anu Agarwal. She's into mobile phones and all. Yeah. तो Yes, उनसे yes, भी yes. मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कैफे में. इनफैक्ट उसने मेरे को एक बार ऐसा भी बोला था कि आप अभी तक कभी भी कैफे के इवेंट में नहीं गई. दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर. I said, No, ठीक है, चलो कभी तो जरूर जाऊंगी. it was my pleasure that I connected with you Yes. and I invited you. Yeah, truly Thank thank you. Payal for connecting with Mauva ji. Thank you. Thank you so much. Should I you, give Mauva my ji. last vote of thanks? Yes, Yes. please. This is a non-stop topic, so I know Shweta, it's we a have to never-ending topic. wind up. Mauva ji, Yes. we can take 1-2 days from you if this continues. Sure. आप plan करो, I'm there. Now we have to lastly thank our Facebook audience for tuning in for the insightful session. And let's continue to learn, grow, and collaborate as Mauva ji specified together. And that's the last part. So thank you all for being there. We are really missing Kavita because of some emergency. She is not able to attend, but very, very thankful to her for giving us this platform. So we are able to learn every day. We are learning new things. Thank you, Kavita. Thank you so much. Yes. Missed Thank you badly. everyone for joining us. Thank you, Mauva ji, once again. Bye, everyone. Thank Bye. you, everyone.